बैक उसको मेनोपॉज हुआ था। हाँ एंड ओके। सेकंड केस था कि पेशेंट डॉक्टर 50 इमरान ईयर दोबारा ओल्ड। रिपीट करिएगा, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है। जी इमरान दोबारा रिपीट कर दें। मैम जो फर्स्ट सिनेरियो था इसमें पेशेंट 47 ईयर ओल्ड थी एंड कंप्लेन आफ्टर मेनोपॉजल सिम्टम एंड शी इज अ मेनोपॉज लास्ट 1 year। ओके And Gigi, and second case, the patient 50-year old and she's come with complaint of menopausal symptom and she have the history of breast cancer 2 years back. हाँ And third था कि patient with the complaint of menopausal symptom and she had endometrial cancer and need the HRT. 45-year old एंडोमेट्रियल कैंसर की हिस्ट्री थी उसकी। कैंसर। मैडम अब और इसमें थोड़ा सा लड़कियों को नहीं कंफ्यूजन ये थी कि बेटा, ये थर्ड सिनेरियो जरा दोबारा बता दीजिए मुझे। एज क्या थी पेशेंट की? 45-year old ठीक and है। history of the endometrial cancer and she need the hormone replacement therapy due to a complaint of the vasomotor symptom। तीनों ओके vasomotor symptom complaint के साथ थी। तीनों ठीक है। ओके सो जी स्टार्ट जी विद द मतलब इसको वन बाय वन हम जो है वो इसको मैनेज करते हैं। इसमें बेसिकली आपकी क्वेश्चन लीड क्या थी? एक तो मतलब ये केस सिनेरियो हो गया ना, बट व्हाट यू वर सपोज टू आंसर। क्या ये इंटरेक्टिव सेशन था? आई मीन इंटरेक्टिव तो होते ही है, काउंसलिंग सेशन था या आपने इनको अलग-अलग उसका स्ट्रक्चर डिस्कशन थी? मैडम ये मेरे डे पे तो नहीं था लेकिन ये है कि ये स्ट्रक्चरल डिस्कशन थी। ओके ठीक है। लेट्स हाँ स्टार्ट विद जी द मैम। फर्स्ट सिनेरियो जो 47 इयर्स है, मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ है एंड शी इज पोस्ट मेनोपॉजल फॉर 1 year एंड प्रेजेंटेड विद द सिम्टम्स। हम्म जी Okay, so first of all, I'm Dr. Mirana. I read the scenario and I am ready for the structural discussion. After getting the demographic data from my patient, as my patient is 47-year-old, she is coming with the complaint of vasomotor symptom and she's menopause last 1 year. So first हम्म I will ask about the symptom. She is suffering how many time, like a hot flushes and disturbance of the sleep and the lack of the energy. And then I will ask about there is any complaint of the postmenopausal bleeding and postcoital bleeding and any history of the vaginal dryness and any history of the breast cancer in her and family and any history of the endometrial cancer, any history of the thromboembolism and stroke, migraine and any history of the active liver disease and diabetes and the personal history of smoking and sedentary lifestyle, family history of the breast cancer, venous thromboembolism and cardiovascular disease, bowel cancer, osteoporosis, and any history of the endometrial cancer and ovarian cancer in her family. And then I will ask about the menopausal symptom and how it affects on her quality of life. And हम्म then I will ask about the personal history of the diabetes, uncontrolled hypertension, and the previous surgical history. There is any history of the hysterectomy or any other surgery. And then I will ask and then I will ask about the history of the drug allergy and smoking history, and any treatment taken so far. And she is know about the hormone replacement therapy and then I will ask about the social economic status at home. Then I will go for the general physical examination of my patient. I will check her BMI and blood pressure, and I will do the thyroid examination, breast examination. I will do the pelvic examination, including the per speculum and per vaginal examination. And then I will go for the baseline investigation, the baseline investigation including the complete blood count and random blood sugar level and liver function test. And I do the ultrasound pelvic. I need the pap smear and I need the mammography, fundoscopy and DEXA scan if report is available. ठीक है। And then I will proceed for the management. So after getting the examination and investigations, I will consult my patient regarding the diagnosis, and that is she having the vasomotor symptom. Is most probably this is due to the menopause, and I will explain the nature of nature and the
nature of the menopause, and this is a natural effect, and all of the patient which are the menopause can suffer from these symptoms. So I will discuss the hormone replacement therapy, and first of all, I will advise the lifestyle modification for the healthy diet and lose weight, pelvic exercises, and pelvic drilling, and regular follow up, and good diet and good sleep. And then I will discuss the hormone replacement therapy in the form of estrogen and progesterone. As my patient is 47-year-old, so I will start the continuous therapy in the form of estrogen and progesterone. um, um, ओके मैडम बस मुझे इतना सो याद है मैडम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ना ये नाइट मेयर है मेरे लिए एचआरटी, इसलिए मैंने आज ना इसको कोई कहा कि बात मैं नहीं। ही करूँ। अब क्लास में बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू एक्ट एक्सीलेंटली, क्योंकि जाहिर है जी आप लोग अभी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो सब चीज़ें। तो जाहिर है आपके लेवल पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, इवन हमारे लेवल पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो हम अभी तक जिसको सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। तो इसमें इतना एम्बेरस होने की बात नहीं होती। हर बंदा इस स्टेज में ही होता है ऑलमोस्ट प्री एग्जाम एंड इवन आफ्टर द एग्जाम भी। ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो वेयर यू वर स्टक अप, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, और आपने ये जी कहा जी कि मैं इसको कॉन्टिन्यूस दूंगी। इज इट सो? हाँ जी 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 मैम, 45 के बाद पेशेंट को हम मैडम, जो मुझे इसका पता है कि बिफोर 45 हम सिक्वेंशियल मैनर में देंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऐड करेंगे, प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम 12 to 14 days, एंड आफ्टर 45 ईयर आई विल गिव द कंटिन्यूअस लो डोज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और अगर और अगर 45 पे हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको सिक्वेंशियल मैनर, आफ्टर 2 ईयर हम उसको कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे, और जो मेनोपॉजल होंगी उनको हम कंटिन्यूस ही देंगे। ऐसा ही है। हाँ, ओके चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज दिस जी इज अ मैम, और मैम दिस इज अ हिस्ट्री, जी थिंग मैम, विच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड फर्दर। जी 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 ठीक जी है। मैम, और मैम हिस्ट्री में भी और हम्म एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस में भी मैडम क्लियर कट कहीं भी, मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है कि आपने इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या मांगना है, और एग्जामिनेशन पेल्विक हम्म करना है नहीं करना, बाय ठीक मैनुअल, है। ये भी सारा। नाउ इन जी 10 minutes यू हैव टू कंप्लीट 3 केसेस। ये भी देखें कि ये कितनी बड़ी टाइम इसको मैनेजमेंट है। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, नाउ यू हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट केस बाय स्टार्टिंग हर अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, जो लाइफस्टाइल, डाइट एंड एवरी अदर थिंग, और फिर आप उसको एचआरटी पे डाल रहे हो, कॉन्टिन्यूअस कंबाइंड प्रिपरेशन। ठीक है। जी तो ये आपकी जी कंक्लूजन थी फॉर फर्स्ट केस। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस। मैम, सेकंड केस में हिस्ट्री पूरी लूँ या इसका सिर्फ मैनेजमेंट, पूरी हिस्ट्री बताऊँ? इसमें बेसिकली अगर आप हिस्ट्री के चक्कर में पड़ गए ना, तो हिस्ट्री तो सिर्फ एक ही केस की आप ले सकते हो। जी इसमें हाँ सिंपली जी आप इन तीनों केसेस में, मतलब आप जैसे इसमें खास तौर पे बाकी तो सारी रूल बाय रूलिंग आउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एज मेंशन इन द फर्स्ट केस, इसमें खास तौर पे जो ब्रेस्ट सीए है उसके बारे में कुछ 2-3 रिसेप्टर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और 2 years बैक है। उसके बाद उसकी थेरेपी क्या मिली, इज शी ऑन सम थेरेपी और नॉट? ठीक है। थेरेपी आई मीन्स एज रिगार्ड टू ब्रेस्ट सीए, उसकी थेरेपी उसको कोई मिल रही है या नहीं मिल रही, और वो बेजोमेटर सिम्टम्स पे है। अब देखो हर केस का जो हर सिनेरियो है उसमें कुछ स्पेशल नीड्स हैं। तो जी इसमें वेजोमोटर सिम्टम चाहे सारोमियाज़ार वो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, लेकिन हर एक की बैकग्राउंड और उसके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल फर्क हैं। तो इसी हाँ में जी आपने ये देखना है कि अब इसमें आपने कैसे उसको लेके चलना है। ठीक है। और जी कौन सी टाइप और किस तरह से उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, अब इसमें जो मैंने आपको बता दिया है ना कि आफ्टर रूलिंग आउट ऑल अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो आई विल जी जी स्पेसिफिकली आस्क अबाउट द सर्जरी, द ट्रीटमेंट हैज बीन डन विच इज 2 years जी बैक, और उसके बाद इज शी ऑन सम ट्रीटमेंट और नॉट, एंड वॉज दैट ओके रिसेप्टर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो सारी चीजें बस इतना सा पूछ लेंगे तो काफी है, क्योंकि बाकी आपने सारी रूल आउट कर ली कॉन्ट्राइंडिकेशन, और वो तीनों में आप ऐसे ही बताओगे कि रूल आउट कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू यूज ऑफ हार्मोन थेरेपी। ठीक है। जी तो एक दफा बता देना बस काफी है, जो तीनों पे वैलिड होगा। लेकिन जो इनकी स्पेशल चीजें हैं बस उससे रिलेटेड एक दो जुमले आपने बोल देने होंगे।
मैं बोलूँ या फिर अब जी बस जी इसके बिल्कुल आप साथ बोलिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दे दिया ना कि इसको ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ओके हर एक में ओके लंबी हिस्ट्री बताने बैठोगे तो वो एक भी केस शायद पूरा ना हो फिर। जी जी ओके हम्म। आई एम डॉक्टर Nana. I read the scenario and I am ready for the structural discussion. So नहीं बेटा, ऐसा हर एक की ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कशन बोलना जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट वन स्टेशन। ये अलहदा ओके से एक स्टेशन नहीं शुरू हुआ। बस आप सिंपली, बल्कि पहले भी ये कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस हु इज 47 years old and post menopausal for 1 year and now presented with vasomotor symptoms. So I will ask the history in detail to rule out any contraindication in terms, and I will in detail I will ask about the post menopausal bleeding है, postcoital bleeding है, या उसको कोई ब्रेस्ट सी और हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक और ये सारा कुछ वो आपने एक ही जुमले में बोल देना। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में सिर्फ ये कि कोई वीटी का रिस्क, डायबिटीज है, लिवर डिजीज, एक्टिव लिवर डिजीज है, कोई हाइपरटेंशन है या उस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम रहा है, तो वो फैमिली हिस्ट्री में डेफिनेटली ये जेनिटल ट्रैक्ट मेलिग्नेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ब्रेस्ट सी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी उसकी हाउ इज हर क्वालिटी ऑफ लाइफ और अदरवाइज ड्यू टू दिस ड्यू टू द सिम्टम। और सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें सिंपली सर्जिकल हिस्ट्री भी कह दोगे इससे, लेकिन इसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि यूट्रस तो नहीं रिमूव हुई हुई। ठीक है, वो बताना जरूरी होगा। हो सकता है 47 years पे उसकी ऑलरेडी 1 साल पहले यूट्रस रिमूव हो गई हो एंड शी इज मतलब मीनोपॉज, उसमें ये भी ये सारा उसके, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी कि व्हाट टू डिसाइड। और इसी तरह से जब आप दूसरा केस बताने बैठोगे तो फिर आप कहोगे कि नाउ कमिंग टू द सेकंड केस। ठीक है, उसमें जी दोबारा से ये सारा कुछ बताना जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आप डिटेल अफोर्ड कर ही नहीं सकते ऐसे स्टेशन पे जो 10 मिनट का है और उसमें आपको 3 केसेस दे दिए गए, यानी आपके पास मुश्किल से 2-3 मिनट हैं फॉर ईच केस। जी ठीक है, चलें जी। अब नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, हु इज 50 years एंड शी इज पोस्ट मेनोपॉजल, presented with vasomotor symptoms and had history of breast CA 2 years back. जी इमरान। यस Okay, as the scenario, so second scenario is a patient 50-year-old and she has the हम्म history of the breast cancer 2 years back and now complain of the vasomotor symptom. So first I हम्म will inquire about the duration of the vasomotor symptom and I will हम्म। ask about the history of the breast cancer and I will which inquire stage the about breast the cancer. detail. I will inquire about the details as regard to the severity of the symptoms and compromising her quality of life. ज़ाहिर है अगर मरीज रात को सो नहीं सकता, उसके साइकोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सारी चीजें, तो उस एक लफ्ज में आप यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी सेवेरिटी को आपने असेस करना है एंड हाउ मच इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, बस इतना सा, क्योंकि उसमें जो एक सिम्टम है वेजो मोटर वो तो आपने बताना ही है ना। एंड एट द सेम टाइम आई विल रूल आउट द अदर हिस्ट्री एज आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फर्स्ट केस। Okay. ठीक है, इस तरह से करके आपने मुख्तसिर उसको करना है। पहले में आपने बता दिया कि मैंने ये पूछना है, ये सारा कुछ पूछना है, तो इसी तरह से जैसे पहले केस में किया था, नाउ एज पर हर स्पेसिफिक हिस्ट्री, तो उससे मैं ये पूछूंगी फ्रीक्वेंसी एंड द सेवेरिटी ऑफ द वेजोमोटर सिम्टम्स एंड एंड हाउ मच इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन यू विल कम टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट सीए कि कब हुआ, क्या टाइप उसकी क्या थी, और उसके बाद उसको कोई ट्रीटमेंट मिली या ना मिली, एंड इज शी टेकिंग एनी ड्रग फॉर द वेजोमोटर सिम्टम्स सो फार या नहीं। और अगर वो कहती है कि हाँ ली है तो उससे कोई रिलीफ हुआ या ना हुआ। और ये हम हर जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें ये हम जरूर पूछते हैं कि ट्रीटमेंट टेकन, रिलीफ या नहीं रिलीफ। ठीक है, ये ड्रग हिस्ट्री हर पेशेंट की हर हिस्ट्री में वट एवर द प्रॉब्लम इज, सिर्फ HRT से रिलेटेड ही नहीं, बाकी भी सारे जो भी मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री पूछना बहुत जरूरी है। हो सकता है जो हम सजेस्ट करें वो ऑलरेडी पहले ले चुकी हो, तो उसको फिर रिपीट करने का फायदा कुछ नहीं है। और इसी तरह से टेस्ट कौन कौन से हुए हैं ताकि हम उसको रिपीट ना करें। जी बेटा शुरू कीजिए। जी
I will ask the duration of the symptom and how the vasomotor symptom affects her quality of life and how much severity and her sleep is disturbed. And then I will inquire about the breast cancer surgery and how long and which type of the surgery and at which stage her cancer was diagnosed and which treatment she has taken so far, and any family history of the breast cancer. And then I will inquire about the she's a any taking she's a any he- she's taking the any treatment for the vasomotor symptom. And I will inquire about the medication. And then I will check her previous surgical notes, breast cancer, breast मैं confuse ही हो गई हूँ. कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको रिलैक्स And I होके will remove her surgical. रिलैक्स माइंड के I will साथ remove. करो। Ji, I हम्म will review her surgical notes. And then I will ask about the family history, personal history, and the medical history, and any drug allergy. Then I will go for the general physical examination. I will do her the breast examination. I will check her BMI and BP. And then I will do the baseline investigation, include all the baseline investigation. I will check I will do the mammography and mammography and full blood count, and also the CBC and the pelvic ultrasound. And after getting all after getting after ruling out all the contraindication, as the patient is have the history of the breast cancer, so I will discuss the alternative method, because the hormone replacement therapy is absolute contraindication for the breast cancer. So I will discuss the alternative method, that is in the form of for the mood swingings and the vasomotor symptom. I will give the cognitive behavioral therapy and antidepressive, and also the vasomotor symptom. I will give the serotonin reuptake inhibitor SSRI, and fluoxetine and paroxetine and SNRI and colonitine. And for the any vaginal dryness, I will give the lubricant and moisturize. हम्म ओके, तो ये आपने कंक्लूड कर दिया सेकंड केस। जी जी. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड केस। Okay, so so the third scenario is 45-year-old patient, and she give एक the और history of चीज जो आप इसमें पूछोगे ना कि ब्रेस्ट सीए के बाद इज शी ऑन फॉलो अप एंड एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्टरी ऑन द फॉलो अप और नॉट। ठीक है, ये भी आपने उससे पूछना होगा, क्योंकि उसका जो करंट स्टेटस है, कोई रिकरेंस वाली चीज तो नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें हेल्प करेंगी डिसाइड करने में। तो इसमें उसका उसका जो फॉलो अप है ब्रेस्ट सीए का, वो भी आपने बस एक लाइन में बता देना होगा। ठीक है, चलें जी जी जी. थर्ड केस। हाँ मैडम जी, इसमें हम लोगों ने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी पूछना था ना, हाँ मतलब ब्रेस्ट वही ना, कैंसर. उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट ट्रीटमेंट इज शी ऑन एनी ट्रीटमेंट आफ्टर द सर्जरी वाज ओवर, या मतलब उसमें क्या ट्रीटमेंट उसको मिली। तो उसमें ये तीनों जी चीजें आ जाती हैं, सर्जरी, रेडियो एंड कीमोथेरेपी। और उसके बाद बाज दफा ये भी कि वो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रही, जैसे टमॉक्सिफेन वगैरह होता है, बहुत सारे पेशेंट उस पर ले रहे होते हैं। तो जी. वो भी सारा कुछ देखना होता है। चलो जी, अब थर्ड केस है। So, the third case is a 45-year-old lady. She is presented with the complaint of vasomotor symptom, and she give the history of endometrial cancer 2 years back. First of all, I will ask the duration of the symptom and the severity of the symptom, and how long she suffered from these symptom, and how its effects on her quality of life. And हम्म I will rule out all the contraindications for the hormone replacement therapy, family history, her personal history, and हम्म personal history. And then I will ask about to the endometrial cancer. What was the symptom? How the disease diagnosed? And which type of surgery was done? हम्म हाँ ठीक है, मतलब इसमें भी आप सारा कुछ यही पूछोगे ना, एंडोमेट्रियल कैंसर, उसके पेपर्स को रिव्यू करना चाहोगे, व्हाट टाइप ऑफ इट वाज, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंडोमेट्रियल सीए की भी। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हुई, उसके Initial, बाद I will उसको check क्या her. ट्रीटमेंट मिली, ये सारा कुछ इसमें भी Any आपने treatment, पूछना है। any treatment taken so far?
यस, और उसमें कोई रिकरेंस या फॉलो अप उसका अब तक का कैसा रहा? ठीक है। Ji. And I will ask about her हम्म follow-up and any complaint after recurrent, any complaint of हम्म now, any complaint after the any vaginal discharge and any per vaginal bleeding. And हम्म then we will go for the general physical examination. I will check her the BMI, blood pressure, thyroid, chest, abdominal examination, and then I will go for the local examination. I will check हम्म for the any vaginal discharge and bleeding and do the bimanual examination हम्म bimanual examination. And हम्म then I will, after getting the history examination, and I will go for the baseline investigation. I will do the complete blood count, a liver function test, and random blood sugar level. And I will check the pelvic ultrasound and mammography, and also uh, uh, ultra, uh, mammography, and then the pap smear. And then I will discuss the management option as the patient give the history of endometrial cancer in 2 years back. हम्म So I will start the so I will first I will inquire हम्म। मैडम इसका मुझे ट्रीटमेंट नहीं आता इसमें मैडम हार्ट एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी सिर्फ हम स्टार्ट करवा देंगे नहीं, आपका ज़हन क्या कहता है? आपकी अपनी कंक्लूजन इसमें क्या है? मैम इसके बारे में मुझे ये है कि इफ पेशेंट हैव द हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर एंड प्रेजेंटेड इन 1 ईयर तो 1 ईयर में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट नहीं करवाते आफ्टर 2 ईयर करवाते हम्म भी हैं तो कंबाइंड करवाते हैं हम्म। इवन व्हेन द सर्जरी हैज बीन डन कंप्लीटली, ठीक है। जी और वो अब कहा तो ये जाता है कि जब आप यूट्रस निकाल लो तो उसके बाद आप ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन दे सकते हो, बट व्हाई वी डोंट गिव इट इन सच केसेस जो एंडोमेट्रियल सीए वाले होते हैं? इसलिए बिकॉज कि हमें नहीं बिकॉज पता देखो कि मैडम उसमें देखिए उसमें बेसिकली स्टेजिंग क्या, उसमें कोई इधर उधर एबरेंट फोकाई तो नहीं है जो दोबारा से रीग्रो कर जाएं बाय गिविंग द एस्ट्रोजन ऑन प्रेपरेशन। सो फॉर दोज एक्टोपिक फोकाई जो इधर उधर कोई सेल्स होंगे, उनके लिए हमने फिर भी प्रोजेस्टेरोन देना है। सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन थेरेपी इफ वी हैव टू गिव इट, कि अगर उसके बगैर गुजारा नहीं है तो भी हम उसको दे सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में, नॉट ईस्ट्रोजन ओनली, इवन व्हेन देयर इज नो रिकरेंस एंड द फॉलो अप इज एक्सीलेंटली गुड। यानी उसमें कोई उसका अभी तक प्रॉब्लम या कोई फॉल्ट अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, एंड शी इज ऑन रेगुलर फॉलोअप्स, तो उसमें पता चल जाता है। तो इसलिए जो है वो इसको हम दे सकते हैं। सो फॉर दैट यू कंबाइंड प्रेपरेशन, वो ठीक है, वो हम उसको दे सकते हैं, बट इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कंबाइंड। चले जी, अब आपने, अब देखो इसमें कितना टाइम लगा। अब 3 केसेस में जो है वो आपने वो सारा, अब इसमें काउंसलिंग वो सारा कुछ, अब ये थोड़ा सा लंबा इसको कह सकते हैं कि अगर ये 2 केसेस हों तो शायद ये प्रॉपरली मैनेज हो जाए, लेकिन अगर 3 केसेस हैं तो ये एक काफी लंबा, जहां पे बहुत लंबा हो और आपको लगे कि यू कैन गो बियॉन्ड द एलोकेटेड टाइम, तो फिर उसको मजीद समराइज कर दो। यानी आप ये कहोगे कि फॉर द फर्स्ट केस आई विल रूल इन द हिस्ट्री, आई विल रूल आउट ऑल द इंडिकेशन, आई विल आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड द severity of the symptom and how much it is compromising her quality of the life, and at the same time I will also ask about any कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखो सारी चीजें आ जाती हैं, ब्रेस्ट सी, ये सारी मतलब जो इसकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री को आप अलहदा से उसमें बता सकते हो, और बाकी उसकी डे टू डे लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं, उसकी डाइट, वो सारा कुछ। और उसके बाद आफ्टर कंप्लीट एग्जामिनेशन जिसमें ब्रेस्ट जेनिटल ट्रैक्ट एग्जामिनेशन सारा कुछ होगा, एंड द बेसलाइन टेस्ट, बेसलाइन टेस्टिंग में की सारी चीजें हैं जो आपने बता दी। क्योंकि अगर तो हम हार्मोन देने का सोच रहे हैं तो हार्मोन ने जिस जिस जगह को इफेक्ट करना है, वेदर गुड और बैड, वो आपने एनालाइज करना है, जिसमें डेफिनेटली पेशेंट्स, जो फर्स्ट केस है, डेफिनेटली अगर इसमें उसको 1 साल हुआ है मीनोपॉज को, तो उसमें हम उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस भी देखेंगे। द बेसलाइन वुड बी द लिपिड प्रोफाइल मैमोग्राम, इफ नेवर हैज बीन डन और नॉट डन इन द प्रीवियस 3 years, तो उसमें आप मैमोग्राम करवाओगे। और उसके अलावा जो बेसलाइन सारी आ जाती हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, सीबीसी है, एलएफटीज हैं,
और बाकी अल्ट्रासाउंड पे तो आपने देख ही लिया, स्मेयर है, मेमोग्राम है और लिपिड प्रोफाइल है। ये आपने जरूरी करवानी है, एंड दिस विल स्टैंड फॉर ऑल अदर 3 केसेस एज वेल। कि आपने अगर कोई स्पेसिफिक चीज आ जाती है तो फिर आपने जैसे फर्ज किया, अगर HRT जो है कि ब्रेस्ट सीए या जो एंडोमेट्रियल सीए है, इसमें पेशेंट को कि ऐसा ट्रीटमेंट मिली विच कैन अफेक्ट द किडनीज, तो आप उसको भी रूल आउट करोगे। और इसी तरह से आपने उसको इंडिविजुअलाइज करना है, वरना अदरवाइज बेसलाइन यही रहेंगे। अब हर केस में लाइफस्टाइल एडेप्टेशन रहेंगी, उसमें आप हर केस में ये बताओगे, नॉट ओनली फॉर द सेकंड केस। तो lifestyle adaptation would be applicable in all 3 cases. Now coming to the particular and the specific therapy, जो कि हम HRT से रिलेटेड बात करते हैं, हार्मोनल या नॉन फार्माकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, जो कि हम डिफरेंट जो अपने लाइफस्टाइल एडेप्टेशन में भी बताएंगे, SSRI और ये सारी चीज़ें, वो भी हम बाकी केसेस में ट्राई कर सकते हैं। बट एज फॉर द सेकेंड केस, जिसमें आपने कहा कि मैं इसमें ईस्ट्रोजन ओनली, नहीं, सेकेंड केस में आपने ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताए थे, ठीक है। बट व्हाट एल्स कैन यू यूज, सपोज के पेशेंट ठीक रही है, कोई रिमिशन फ्री, कोई और उसका ऐसा मसला नहीं है, तो इसमें अगर इन लाइफस्टाइल एडेप्टेशन से कितनी कोई इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक थेरेपी इन अ पेशेंट जिसको 2 साल पहले अभी पर्सनल हिस्ट्री है उसकी ब्रेस्ट सीए की, तो व्हाट एल्स कैन बी एन ऑप्शन फॉर हर? Can we talk about riloxafen in this case, which is a sister drug for tamoxifen? Yes, क्या madam. हम वो यूज कर सकते हैं, जो इविस्टा के नाम से आती है? और जी जी। हाँ, मतलब उसमें कम डेफिनेटली वो प्रिवेंशन वाली चीज तो है ही है। और अगर जी उसमें बहुत सारे इश्यूज और भी आ जाएंगे कि अगर वो टेमोक्सिफेन पे ऑलरेडी है तो रिलॉक्सिफेन हम उसको एडिशनली दें, या टेमोक्सिफेन विल सर्व द पर्पस एट द सेम टाइम, ठीक है। क्योंकि टेमोक्सिफेन इज प्रो इस्ट्रोजेनिक फॉर द एंडोमेट्रियम एंड एंटी इस्ट्रोजेनिक फॉर द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट। लेकिन उसका जो सिस्टेमिक इफेक्ट है दैट इज अ बिग क्वेश्चनेबल, लेकिन पार्टली इट कैन मैनेज द हॉट फ्लैशेस। तो इसलिए जो है वो इसमें हम रिलॉक्सिफेन की बात कर सकते हैं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अच्छा और इसमें क्या यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब ये उसमें उसकी बात की जा सकती है। और ठीक। इसके अलावा कुछ नॉन हार्मोनल हॉट फ्लैशेस को ट्रीट करने वाली चीजें हैं, जो कि मैं थोड़ा सा स्लाइड्स पे भी आपको बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में आपको उससे बेसिकली आइडिया होगा कि वो क्या क्या चीजें हैं। जैसे वियोजा के नाम से है, जो कि NK3 इनहिबिटर्स होता है, जो कि उसके न्यूरोनल कंट्रोल को, हॉट फ्लैशेस के न्यूरोनल कंट्रोल को ब्लॉक करता है। एंड दिस इज नाउ इन प्रैक्टिस, ये भी रिसेंटली RCOG की कॉन्फ्रेंस में डिस्कस भी हुआ था, और ये वहां पे लोग यूज कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इवन इस केस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो बाकी जो थर्ड केस है, थर्ड केस को तो हमने कंक्लूड वैसे ही कर लिया था कि उसमें आपने ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन नहीं देनी, रादर यू विल पुट हर ऑन द कॉम्बिनेशन थेरेपी। के कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो आपने जो देनी है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोथ होगी, और उसके अलावा इसमें ये कॉन्टिन्यूस होगी, इट विल नॉट बी सिक्वेंशियल। क्योंकि देखो जो, मैडम अगर हाँ मैडम जी, अगर एंडोमेट्रियस ये अर्ली स्टेज पे ही हमने उसकी हिस्टेरेक्टमी कर दी है, जैसे हम कहते हैं हाँ, कि हम 2 साल तक नहीं देते, हिस्टेक्टमी फिर या रिकरेंस देखने मेस्टेक्टमी? के लिए। हिस्टेक्टमी या मैडम मेस्टेक्टमी? मैडम मैं हिस्टेरेक्टमी की बात कर रही हूँ, एंडोमेट्रियल सीए वाला जो थर्ड केस था। ओके ओके, इसमें मैं जरा स्लाइडें शेयर कर लूं, फिर साथ साथ बात करते हैं। जी मैडम। एक मिनट। हम्म, तो इसमें मैं हिस्टेक्टमी, ये स्लाइडें शेयर करते हैं जरा। तो अगर हमने अर्ली स्टेज पे, ये आप थर्ड केस की बात कर रहे हैं ना, कि उसमें हमने हिस्टेक्टमी कर दी, सो प्रोबेबली दैट वुड बी इन द स्टेज 1। कौन सी जो मैंने अभी की थी ना, हाँ ठीक है, यही वाली। इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, मतलब फुल स्लाइड।
ठीक है, ठीक है मैडम, यहाँ से आगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने केस स्पेसिफिक डिस्कशन पे। अभी ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए इसको मैं अभी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हमने अर्ली स्टेज पे हिस्टेक्टमी कर ली तो उसमें हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बट स्टिल नॉट, because the dissemination of the cells you cannot predict even in the stage 1A 1B। तो इसलिए उसमें हमेशा ये एक प्रोफाइलेक्टिक वो होता है कि इसमें आप ईस्ट्रोजन नॉन प्रेपरेशन ना दें, रादर यू गिव इट इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी, और यू कैन चूज अ नॉन हार्मोनल प्रेपरेशन ऑल्सो। अब इसमें यह है कि जब हम किसी भी केस में जब हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने इसमें हमेशा वो डिजीज टू डिजीज स्पेसिफिक आपने इसमें सारों में सिलेक्ट किया, तो इसमें जो 3 चीजें होती हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं किस डोज में। और अब डोज सिर्फ ये नहीं होती कि हमने कोई भी मार्केट से कॉम्बिनेशन थेरेपी पकड़ी और हमें ये पता है कि ये फेमोस्टोन है, ये प्रोगैलुटोन है, एंड वाइस वर्सा, अदर बहुत सारे देयर आर मेनी ब्रांड्स, तो हम उसको देना शुरू करते हैं। रादर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रेपरेशंस इन दैट, कि इसमें ईस्ट्रोजन कौन सी है, हर एक की अपनी क्वालिटीज होती हैं, ईस्ट्रोजन की भी, प्रोजेस्टेरोन की अपनी क्वालिटीज हैं। अब कुछ ईस्ट्रोजन ऐसी हैं जो कि कुछ रिस्क को बढ़ा देती हैं, कुछ ईस्ट्रोजन, अब वेजोमोटर सिम्टम एज यू ऑल नो कि ये हमेशा कंट्रोल होते हैं अप टू 85%, इन 85% ऑफ केसेस तक बाय द ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन तो हम उस वक्त देते हैं जब हमें एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए व्हेन द यूट्रस इज इंटैक्ट, या अब हमने किसी ऐसी डिजीज में देना है जिसमें सर्जरी हो चुकी है, लाइक इन द थर्ड केस कि वो निकल गया, लेकिन एक्टोपिक एंडोमेट्रियल फोकाई कैन बी एनीवेयर, सो इट कैन नॉट रीग्रो इन द फॉर्म ऑफ द रिकरेंस ऑफ द मैस, तो उसमें आपने कॉम्बिनेशन थेरेपी दी। और इसके अलावा आपने बेसिकली जो अब हमने प्रोजेस्टेरोन चूके दिया इसको एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए, सो यू ट्राई टू चूज अ सेफर प्रोजेस्टेरोन। सेफर प्रोजेस्टेरोन वो होता है जो कि बायो आइडेंटिकल होता है। बायो आइडेंटिकल मीन्स क्लोजली रिजेंबलिंग द नेचुरल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द बॉडी, और ये इनको हम माइक्रोनाइजाइड कहते हैं। माइक्रोनाइजाइड ईस्ट्रोजन भी होता है, माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्टेरोन भी होता है, तो ये ज्यादा सेफर ऑप्शंस में आते हैं। लेकिन इनका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी थोड़ी सी हमें हाई डोज चाहिए होती है, क्योंकि ये इतने पोटेंट नहीं होते एज कंपेयर टू द सिंथेटिक वन। अब अगर फर्ज किया किसी पेशेंट में, लाइक इन ऑल दीज केसेस, अगर कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें ओरल प्रेपरेशन, यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव डिलीवरी सिस्टम, यानी अगर आप ओरल फॉर्म में नहीं दे सकते क्योंकि उससे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे, लिपिड प्रोफाइल पे, लिवर प्रॉब्लम पे, ओबेसिटी पे, स्मोकर्स में एंड और डीवीटी के रिस्क में, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में वो खतरा बन सकता है, तो फिर वो मेडिसिन आप ओरली नहीं देते, आप उसको ऑल्टरनेटिव डिलीवरी सिस्टम के जरिए इस्तेमाल करते हो, एंड दैट विल पर्टेन टू द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ द पेशेंट। अब वेजोमोटर सिम्टम अगर हमने कंट्रोल करने हैं तो वो या तो ज्यादा बेहतर होंगे कंट्रोल बाय द ओरल प्रेपरेशन, या फिर आप उसको ईस्ट्रोजन ओनली जेल्स या पैच के साथ आप उसको कर सकते हो कंट्रोल, ठीक है। बट इन दैट केस यू प्रेफरेबली विल ट्राई सम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, जैसे हमने बाकी सारी वो चीजें उसको भी अभी हम डिटेल से देखते हैं कि व्हाट आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। SSRI जैसा कि हमें इमराना ने बताया, दैट इज वन ऑफ मैडम द ऑल्सो। जी जी, मैडम एक क्वेश्चन था बताइए। कि मैडम जैसे ये सिनेरियो जो इन्होंने एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वाला बताया, तो मैडम ये हाँ, पहले मैंने सॉल्व किया हुआ है क्योंकि ये पास पेपर का है ना ठीक है। सिनेरियो। तो मैडम इसके अंदर मैडम के जो सवाल थे ना जो मिस किए थे मैंने अपने स्टेशन पे, वो ये था कि स्टेज पूछना था इसमें, ठीक है, और इसमें पूछना था कि पेशेंट का जो है टाइप कौन सा था, ये देखना था कैंसर का टाइप 1 था या टाइप 2 देखो, था।
ये मैडम तो मैंने इसमें टाइप ये टाइप था आपको कि कहा जो था ना कि जी हाँ एंडोमेट्रियल इसमें स्टेजिंग डेफिनेटली इज वन ऑफ द, इसीलिए आपने जी पर्टिकुलरली तो मैडम जो एग्जामिनर थी उसने मुझे एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जो स्टेज हम्म 1-2 है ना, तो हम्म इसका एक टॉक आर्टिकल है जो मेलिग्नेंसी के साथ एचआरटी का है। हम्म तो हम्म मैडम उसमें लिखा हुआ था कि स्टेज 1 और 2 में कोई ऑकल्ट फोकाई की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसीलिए स्टेज 1-2 में हम्म आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग एचआरटी दे सकते हैं, लेकिन जो स्टेज हम्म 3-4 है अगर पेशेंट हम्म, को, तो उसमें अलोन ईएचआरटी देनी नहीं है, क्योंकि उससे हाँ पेशेंट का सर्वाइवल भी कम हो जाएगा और रिकरेंस के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें ओकल्ट ये फोकाई होते हैं। डेफिनेटली है, बट माय कंसर्न इज के जहाँ पे मैडम ये टाइप पे डिपेंड करेगा ना। टाइप 2 कैंसर में तो इतना रिस्क नहीं होता, वो तो नॉन एस्ट्रोजन हाँ डिपेंडेंट होते बिल्कुल, हैं ना। जैसे टेमोक्सिफेन इंड्यूस्ड अगर वो एंडोमेट्रियल सी है तो वो तो जैसे ही ड्रग आप छोड़ोगे वो रिवर्ट भी हो सकता है, वो बहुत इजीली मैनेज भी हो सकता है। तो जहाँ पे हमने ब्रेस्ट सीए की भी बात की, जहाँ पे हमने एंडोमेट्रियल सीए की भी बात की, उसमें उसका टाइप टाइप जो मैंने कहा था कि उसकी टाइप पूछें और स्टेज डेफिनेटली इसी तरह से, जो इवन उसका जो मैं हार्मोन रिसेप्टर्स की बात कर रही हूँ कि ब्रेस्ट सीए में आप वो भी पूछोगे कि क्या उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट क्या थी, क्योंकि देखो जहां पे अब इवन अगर ये सर्विक्स है, विजाइना है, या जो है ये, इसमें टाइप का हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप एक होती है, उसमें आप ये भी पूछोगे कि ये एडिनोकार्सिनोमा था प्योरली बिकॉज इन दैट केस। अब इसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन जब तक हम स्टडी नहीं करते, हाउ वी कैन बी श्योर कि एक्टोपिक फोकाई नहीं हो सकते। अगर तो उसमें मेलिग्नेंट सेल्स, यानी ये जो एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंट सेल्स हैं, अगर उसकी लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन एक खास स्टेज से ज्यादा हो जाए तो उसमें एक्टोपिक फोकाई होने के चांसेस होते हैं। एंड हाउ श्योरली वी कैन से दैट इट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट इन स्टेज 1 and 2? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन इट कि इसमें हम ये कहें कि स्टेज 1 और 2 में। सो इसलिए अब बाद दफा पेशेंट को जाहिर है हमने रिव्यू तो करने हैं पेपर को, उसमें स्टेज का तो पता चल जाएगा, उसमें टाइप का भी हमें पता चल जाएगा। मैडम वो खुद ही लेकिन मैडम ही बता रही थी, स्टेज भी मैडम बता रही थी और टाइप भी मैडम ही बता रही थी। अच्छा, उन्होंने बताया था कि ये जी जी, कौन वो सी है। आपने कुछ भी नहीं उसमें मैडम, वो स्ट्रक्चरल डिस्कशन था ना, तो उसके ओके। अंदर आप मैडम खुद ही आपको बता देंगी कि ये स्टेज हम्म है और अब इसको आप कौन सी एचआरटी देंगी, क्वेश्चन ही ये okay। था। तो लेकिन उसमें ठीक है वो तो बता दिया ना, लेकिन मैं इसको मजीद फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि उसमें जब तक हम लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन को स्टडी नहीं करते हम इसके बारे में कुछ पक्की बात नहीं कर सकते। द चांस इज लेस बट नॉट नॉन एग्जिस्टेंट। चांस जरूर कम होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट ना करता हो, क्योंकि lymphovascular invasion is right in the first stage as well in all type of malignancies, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। तो जब lymphovascular invasion हो जाएगी तो उसके सेल्स कहीं भी इधर उधर जाके लग सकते हैं, इसीलिए तो रिकरेंस होती है। इसीलिए जब आप लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन पॉजिटिव आ जाए तो वो एक इंडिकेशन भी बन जाती है इवन इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द। अब ये टाइप की, ये आप लोगों ने एंडोमेट्रियल जो सीए है उसके बारे में जो हमारा एक दफा लेक्चर भी हो चुका हुआ है कि इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर टाइपिंग एज वेल। अब मॉलिक्यूलर टाइपिंग में अगर P53 पॉजिटिव आ जाता है इन द स्टेज 1, एंडोमेट्रियल सीए की मैं बात कर रही हूँ, और उसकी हिस्टोकेमिस्ट्री पे और उसकी मॉलिक्यूलर टाइपिंग के P53 पॉजिटिव आ जाता है तो दैट इज इक्वल टू स्टेज 3, और हम उसकी ट्रीटमेंट स्टेज 3 के हिसाब से ही करते हैं। तो ये अगर हम डिस्कशन आगे चलाएं तो ये बहुत लंबी चल जाएगी कि इसलिए सेफर एटीट्यूड हमेशा यही होता है कि आपने अगर इन सारी चीज़ों का नहीं पता, हमें हमें ये भी नहीं पता, टिश्यू टाइपिंग का भी नहीं पता, मॉलिक्यूलर टाइपिंग तो बहुत कम ही की जाती है, और मॉलिक्यूलर टाइपिंग का भी नहीं पता, तो ऐसी सूरत में हमें रिकरेंस से बचने के लिए हमें बेहतर होता है कि हम ईस्ट्रोजन अलोन को, खास तौर पे अगर वो एडिनो कार्सिनोमा है तो ईस्ट्रोजन अलोन को ना दें, ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन हम ना दें एडिनो कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स स्टेज 1 में भी।
दिस इज माय व्यू पॉइंट, ठीक है, बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक फैक्ट्स। तो इसलिए जो है वो इसको थोड़ा सा जरा मजीद वो देखने की जरूरत है, क्योंकि अब देखो इवन बाज़ दफ़ा ये जो मॉलिक्यूलर टाइपिंग का कंसेप्ट निकला भी इसीलिए था कि अगर स्टेज 1 के कुछ केसेस रिकर कर जाते थे और स्टेज 3 के क्योर हो जाते थे, तो अगर अगर ये MMR हो तो उसमें तो स्टेज 3 भी बिहेव ऐसे करेगा जैसे स्टेज 1 है। अगर ये P53 है, चाहे वो स्टेज 1 में है, वो बिहेव ऐसे ही करेगा जैसे स्टेज 3 है। तो अब तो स्टेजिंग होती है इंक्लूडिंग द मॉलिक्यूलर टाइपिंग भी, ताकि उसकी एग्जैक्ट टारगेटिक थेरेपी हो। तो ये वो चीज़ है जो कि फिर आपने इसमें देखनी होगी। लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो फिर इतनी लंबी डिस्कशन का तो टाइम ही नहीं होता, या तो एक आइसोलेटेड केस हो। लेकिन जहां पे ये 3 है तो आप उसमें फिर प्रेफरेबली इसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, अब हम इसमें बात कर रहे थे कि आपने जो है वो इसको किस तरह से आपने डिसाइड कैसे करना होता है। अब इसमें जो मेन चीजें हैं, अब इसमें तीनों केसेस में सिर्फ एक में यूट्रस निकली हुई थी। सो दैट इज अनदर पॉइंट टू डिसाइड कि अगर यूट्रस निकली हुई है, अगर फर्ज किया इसमें कोई स्पेशल नीड ना होती, इसमें तो थी यूट्रस निकली इसलिए कि एंडोमेट्रियल सीए है। अदरवाइज अगर एंडोमेट्रियल सीए का मसला ना हो, फाइब्रल यूट्रस के लिए उसकी निकली हुई है यूट्रस, तो आसानी से आप उसको ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन दे दो, अगर कोई और मसला नहीं है तो। और इसी तरह से फिर आपने जो और चीज करनी होगी उसमें, अब इंटैक्ट यूट्रस के साथ है, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। अब विद इन 1 ईयर आप उसमें सिक्वेंशियल HRT देते हो। सिक्वेंशियल मीन जो आपने एक वक्फे वक्फे से देनी होती है। दिस इज सिक्वेंशियल regime कैन बी ईदर continuous sequential और इट कैन बी cyclical sequential। ये समझ आ रही है बात? हेलो? जी 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 मैडम, मैम, नहीं नहीं मैडम, ये समझ नहीं आई। ओके, ये समझ इसको में हम आ गया मजीद अभी एक स्लाइड के साथ, ठीक है, मैं इसको जरा आगे मैडम। लेके जाती हूँ ताकि आपको कंटिन्यूस अभी समझ आ मैडम जाए। ओह, कंटिन्यूस मैडम कंटिन्यूस सिक्वेंशियल जो हम मंथली देते होते हैं ना, कि भाई 11 डेज हमने एस्ट्रोजन दी और फिर 10 डेज के लिए प्रोजेस्टेरोन दी, और जो आप कह रही थी कि भाई साइक्लिकल, उसके अंदर मैडम वो जो हम 3 महीने वाली होती है, एंड में उसे फिर प्रोजेस्टेरोन देते हैं हाँ 14 डेज मतलब के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना उसको देते रहते हैं। अब ये जो साइक्लिकल कंबाइंड है ना, अब ये साइक्लिकल कंबाइंड भी हो सकती है और खाली एस्ट्रोजन भी हो सकती है। अब ये यस मैडम। एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है। साइक्लिकल कंबाइंड का मतलब ये है कि ये हमने दी 21 दिन, एक हफ्ता बंद कर दी, एक हफ्ते का गैप आ गया। ये कॉन्टिन्यूस कंबाइंड है, सीधी सीधी सी बात के दोनों आप देते जा रहे हो। अगर आपने क्वार्टरली ब्लीड करना है तो वो आप उसको एक हफ्ते के लिए बीच में छोड़ सकते हो। अब साइक्लिकल सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि चूंकि वेजोमोटर सिम्टम या बाकी जो जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स हैं, या जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, या जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं, दीज आर ऑलवेज बेटर मैनेज्ड बाय द ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन तो खाली हमने एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए दी होती है। तो साइक्लिकल सिक्वेंशियल मीन्स के 3 हफ्ते आप लगातार इसको ईस्ट्रोजन दो, और फिर आखिरी एक हफ्ता, इसमें अमूमन 10 से 14 दिन का होता है, वो डिपेंड करता है कि आप पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से डिसाइड करते हो। तो ये थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज इसमें हो जाता है। लेकिन आखिरी जो 10 से 14 दिन है उसमें साथ आप प्रोजेस्टेरोन कंबाइन कर देती हो, और इस तरह की प्रेपरेशन अवेलेबल भी हैं, जिसमें पहली वाली जो टेबलेट्स होती हैं 11, उनमें खाली ईस्ट्रोजन होती है। लेकिन जो बाद वाली जो 10 टेबलेट्स हैं उनमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइन होता है। सो ईस्ट्रोजन इज फॉर होल 3 वीक्स। ये नहीं है कि सिर्फ हमने उसको पहले 11 दिन दिया और उसके बाद फिर ये दे दिया, ऐसा नहीं है। अब जो कॉन्टिन्यूस सिक्वेंशियल है उसमें, अब इसमें एक गैप आ गया, यानी एक हफ्ते का गैप आ गया। अब कॉन्टिन्यूस सिक्वेंशियल का मतलब ये है, सिक्वेंशियल है फॉर प्रोजेस्टेरोन ओनली, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस है फॉर ईस्ट्रोजन ओनली। तो ईस्ट्रोजन तो हमने दी कॉन्टिन्यूस, और जो सिक्वेंशियल है वो हमने दी प्रोजेस्टेरोन। दिस इज वन थिंग कि रिजीम आपने कौन सी यूज करनी है, दीज आर कॉल्ड द रिजीम्स, कि आप इसमें साइक्लिकल, अब ये हर पेशेंट के हिसाब से आपने डिसाइड करना होगा
क्योंकि अगर तो किसी को बहुत सीवियर वेजोमोटर सिम्टम्स है तो ईदर यू गिव हर कॉन्टिन्यूस कंबाइंड और कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल अगर यूट्रस इंटैक्ट है तो, और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो, और अगर फर्ज किया यूट्रस रिमूव हुई हुई है और कोई ऐसी उसकी पास्ट हिस्ट्री सिग्निफिकेंट नहीं है तो इट इज बेटर टू गिव ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन कॉन्टिन्यूसली। इज इट क्लियर? इसको समझना बड़ा जरूरी है, ये पहला स्टेप है इसके समझने का, रिजीम्स को समझना कि इनको देने के तरीके क्या होते हैं, और ये जो डिफरेंट टेबलेट्स होती हैं वो इन तरीकों के हिसाब से डिसाइड हुई होती हैं, मतलब डिजाइन हुई हुई होती हैं। मैडम ठीक, जो साइक्लिकल सिक्वेंशियल है जिसके अंदर ये हमारे पास क्लाइमिन आ जाती हैं, ये आती है ना साइक्लिकल सिक्वेंशियल जिसके अंदर 11 और 10 होती हैं। हाँ तो मैडम ये कंटिन्यू साइक्लिकल सिक्वेंशियल है। ठीक है, आगे जाके मैंने पूरी डिटेल भी डिफरेंट प्रेपरेशंस की भी बताई हुई है। ठीक है, तो जी मैडम। ये साइक्लिकल सिक्वेंशियल हो गई। तो मैडम कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस लेकिन मेरी जो मेरे कहने का मतलब ये था वो ये था कि अगर तो पेशेंट को वेजोमोटर सिम्टम्स हैं या स्वीयर जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स हैं या उसको स्वीयर सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं तो इट इज बेटर टू गिव कॉन्टिन्यूस सिक्वेंशियल इफ यूट्रस इज इंटैक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप साइक्लिकल सिक्वेंशियल दोगे तो एक हफ्ता आपका मरीज का गुजरेगा बगैर ईस्ट्रोजन के, उसमें फिर उसका कंट्रोल ऑफ वेजोमोटर सिम्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो यू हैव टू चूज अ regime फॉर वेजोमोटर सिम्टम जिसमें ईस्ट्रोजन जो है वो मुस्तकिल दी जा रही है, जैसे ये या ये। ठीक है, अदरवाइज अगर ये वाला मसला, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिकल से, चाहे वो सिक्वेंशियल हो चाहे वो कंबाइंड हो। लेकिन अगर हमें लगे कि पेशेंट के 3 महीने बाद आपने फॉलोअप करना है, 3 महीने बाद फॉलोअप जरूरी होता है ये देखने के लिए कि कितना फायदा हुआ एचआरटी का, या एचआरटी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, विथड्रॉल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या उसको कोई वेट गेन या बॉडी एक्स एंड पेन, ये सारी चीजें जो ज्यादातर प्रोजेस्टेशनल इफेक्ट होते हैं, तो उसको हमने रिव्यू करना होता है ताकि हम अपनी ट्रीटमेंट को उस तरह से चेंज कर सके। तो अगर तो उसमें स्टार्ट, और इसमें बेसिक रूल ये होता है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट डोज, क्योंकि हर पेशेंट का रिस्पॉन्स करने का लेवल फर्क होता है। मे बी विद द स्मॉलेस्ट डोज द पेशेंट रिस्पॉन्ड इन अ बेटर वे, सो इट इज बेटर टू गिव स्मॉल डोज ऑफ एक्सोजिनस हॉर्मोन्स। अगर वो बायो आइडेंटिकल नहीं है तो बायो आइडेंटिकल में हमें डोज भी ज्यादा देनी पड़ती है, जबकि सिंथेटिक में हम कम डोज से भी काम चला लेते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द लो डोज। और फिर इनकी जो रिजीम्स हैं इनको भी टाइम टू टाइम हमें रिव्यू करना पड़ता है। अगर फर्ज किया मरीज आती है 3 महीने बाद और वो कहती है कि मुझे विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको, इसकी प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार बढ़ा दें। और अगर प्रोजेस्टेशनल इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो फिर हमने प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार कम कर देनी होगी। यानी हम अगर कंबाइंड प्रेपरेशन आ रही हैं या कोई ऐसी प्रेपरेशन की बनी बनाई मेडिसिन होती हैं ना, तो फिर हम कोई ऐसा ब्रांड चूज करेंगे जिसमें कम प्रोजेस्टेरॉन हो या जो बायो माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन हो। तो ये मैडम चीज अगर, स्लाइड, सॉरी जी, मैडम स्लाइड शो हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही, बाकियों को भी नहीं हो रही क्या? मैम हमें नहीं तो नहीं एक मैडम, स्लाइड भी शो नहीं हुई। क्या हमसे आपने अभी एक बाद दफा में भी करनी है। स्लाइड, कमाल है, हम तो तो बेटा वही फिर रिपीट आपको करना समझ मैडम नहीं आ चाहिए। रही होगी शो तो ये हो आपने रही पहले क्यों नहीं बताया? जी हमने यही समझा कि अभी आप अभी थोड़ी देर तक करेंगी तो नहीं अभी नहीं, करेंगी मैं ना। तो उसको मैंने कहा था आईटी वाले को कि इसको शेयर कर दे सबके साथ। मेरा ख्याल है वो जूम तो कर गया लेकिन उसने शेयर नहीं किया होगा। चलो मैंने उसको कॉल किया, अभी देखते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो बेटा आपको समझ ही नहीं आएगी, इसीलिए फिर आपको समझ नहीं ना आ रही है, क्योंकि हाँ ये जी। स्लाइड देखनी जरूरी है तभी आपको समझ आएगी। ये शेयर नहीं हो रही स्लाइड। ठीक है, वो अभी आता है तो फिर ये शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स वेट फॉर इट, क्योंकि ये जब तक स्लाइड शो नहीं होगी तब तक तो फिर फायदा ही कुछ नहीं। तो एनीवे हम इसका जो राइट टाइम होता है शुरू करने का, जो हम अमूमन के हाउ टू स्टार्ट इट,
कोशिश करनी चाहिए। इसकी स्लाइडें तो शेयर ही नहीं हो रही किसी के साथ, ऑडियंस के साथ नहीं शेयर हो रही। इसको हटा दें। क्या आप शेयर करके चलते ना पहले सबके साथ? ये मुझे कीजिए। हाँ जी, आप शेयर हो रही है सबके साथ, नजर आ रही है क्या? यस मैम, जी नजर आ मैडम। रही है। ओके, मैं इसको फुल स्क्रीन जरा करती हूँ, फुल स्क्रीन कर दो। जी मैडम। ये पूछिएगा वो मैडम। जरा इसको परे कर, ताकि वो ब्लॉक ना करें। अच्छा, अब मैं दोबारा फिर उसकी तरफ जाती हूँ, ठीक है, मैं बल्क दे दूंगी। तो उस पे जिस पे हमने एक इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर दी लेकिन आपको नजर नहीं आ रही थी, ठीक है, तो इसको जरा स्लाइड को, अब नजर आ रही है सबको? जी यस जी मैडम। मैम, यस मैम। ओके, तो इसको फिर मैं दोबारा बता रही हूँ। साइक्लिकल कंबाइंड सारे मतलब इसमें 3 हफ्ते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों और 1 हफ्ता खाली। साइक्लिकल का मतलब ही ये है। कॉन्टिन्यूस कंबाइंड 4 हफ्ते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो ले रही है। साइक्लिकल सिक्वेंशियल, अब इसमें जो सबसे जरूरी आइटम होता है ना एचआरटी में, वो ईस्ट्रोजन ही होता है। तो साइक्लिकल सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन तो ले रही है वो 3 हफ्ते, लेकिन आखिरी 10 से 14 दिन में उसने प्रोजेस्टेरोन भी ले लिया और 1 हफ्ता उसका खाली गुजरा। कॉन्टिन्यूस सिक्वेंशियल में चारों के चारों हफ्ते वो ईस्ट्रोजन लेती रही और आखिरी 10 से 14 दिन में इसने ये बल्कि 1 हफ्ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 से 14 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अमूमन ये 10 टेबलेट्स ही होती हैं इसकी, जो कंबाइंड वाली प्रिपरेशन में होती हैं। तो कॉन्टिन्यूस सिक्वेंशियल में का मतलब ये इसमें ये कि आखिरी फिर 10 से 14 दिन में प्रोजेस्टेरोन ऐड होगी। समझ आ रही है? अब ये मेरा ख्याल है इस पे हमने डिस्कशन तो बहुत कर ली है, लेकिन ये अगर आप स्लाइड आप देख रहे हो अभी, तो इसमें ये थोड़ा सा आपको शायद बेहतर समझ आ जाए। अगर ये क्लियर हो गया तो हम इसको आगे मूव करें अब, मैडम ये क्योंकि जो ये जेम्स है, साइक्लिकल ये भी सिक्वेंशियल थी जेम्स है उसमें एक जी। हफ्ता दी थी। मैडम जो साइक्लिकल थी उसमें 1 हफ्ता दी थी और जो कंटिन्यू सिक्वेंशियल थी उसमें 15 दिन दिए थे। हाँ, मैंने 15 दिन नहीं, 10 से 14 दिन होते हैं अमूमन। कुछ लोग 10 से 12, ये हर पेशेंट के इंडिविजुअल सिनेरियो के हिसाब से डिसाइड होता है अच्छा। कि 10 दिन देनी है, 14 दिन देनी है। अमूमन जो साइक्लिकल सिक्वेंशियल होती है उसमें 11 टेबलेट होती हैं उसकी ईस्ट्रोजन, खाली ईस्ट्रोजन की, और फिर उसके बाद 10 टेबलेट होती हैं प्रोजेस्टेरोन के साथ ईस्ट्रोजन की। तो 10 टेबलेट्स होती हैं इवन इसमें भी, जो हम ये साइक्लिकल सिक्वेंशियल की बात करते हैं। और इसी तरह से जो कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल है, इसमें मतलब मकसद ये है इनका कि कुछ लोगों में ये जो 1 हफ्ता गुजरता है बगैर हॉर्मोन्स के, उसमें उनके जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन हो जाते हैं, वेसोमोटर सिम्टम, या दोबारा से आ जाते हैं, या उनकी मैनेजमेंट पोर हो जाती है। सो इन दोज पेशेंट्स ये वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगी, कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल या कॉन्टिन्यूस कंबाइंड, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से डिसाइड करना है। अब इसमें अब ये अगर समझ आ गई तो हम बाकी स्लाइडों पे क्विकली मूव कर जाएं, ठीक है। जी मैडम जी। जी मैम। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड जिसको हमने यहाँ पे, अब इसको स्टार्ट करना चाहिए विद इन द 10 years ऑफ मेनोपॉज या 60 years से पहले पहले, क्योंकि इसमें इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है, खास तौर पे कार्डियो प्रोटेक्टिव और ओस्टियोपोरोसिस का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इसमें वो होता है, ज्यादा बेहतर इफेक्ट होता है, और लो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट सीएबी। लेकिन अमूमन हॉट फ्लैशेस तो इतना इंतजार नहीं करते कि कोई 4-5 साल हो, ये विद इन 2 years अपेयर हो जाते हैं, बाज दफा थोड़ा सा लेट भी अपेयर होते हैं, और तकरीबन 7-8 साल चलते होते हैं।
तो इसमें हमें इमीडिएट बार दफा विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ मेनोपॉज और इवन समटाइम्स इन द पेरीमेनोपॉजल एज भी हमें देनी पड़ जाती है। तो पेरीमेनोपॉजल एज में भी एचआरटी का रोल होता है, नॉट ओनली आफ्टर मेनोपॉज। तो ये हमने देखना होता है। अब ईस्ट्रोजन की जो डिफरेंट, जो मैं बात कर रही थी ना कि इसमें हमें कोई भी चूज करने से पहले, यानी जो हम चूज करते हैं जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, तो उसमें उसकी जो प्रेपरेशंस हैं वो भी, और इसके अलावा उनकी डोज भी। अब ये जो लो डोज है ना, ये अमूमन ये प्रेफरेबल होती है इन सम पेशेंट्स, लेकिन जिन पेशेंट को सीवियर वेजोमोटर सिम्टम्स हो उनको फिर हमें थोड़ा सा ज्यादा डोज, मॉडरेट डोज के साथ हम शुरू कर सकते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सो दिस शोज सम टाइप्स ऑफ द ईस्ट्रोजन। और ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो ये है कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन, जो कि प्राइमरीन के नाम से भी आती है। और ये भी यूज मतलब हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट सीए का रिस्क बढ़ जाता है। 17 बीटा ईस्ट्रेडायोल ज्यादा यूज होती है। ईस्ट्रेडायोल वेलिडेट ये सबसे कॉमनली है जो कि यूज होती है, और इन कॉम्बिनेशन विद सम प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये भी है ईस्ट्रेडायोल हेमीहाइड्रेट जेल, ये भी जो है वो ये कुछ प्रेपरेशन में ये भी इस्तेमाल होती है। अब डाइड्रोजेस्ट्रॉन, माइक्रोनाइजर प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि माइक्रोनाइजर प्रोजेस्ट्रॉन कौन सी है जो आप जिससे अवेयर हो आप? यूट्रोजेस्ट्रन, साइक्लोजेस्ट और प्रोजिफिक, ये हैं जो ब्रांड नेम हैं। दिस ऑल आर माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन। और ये भी सारी मेडिसिन, यानी यूट्रोजेस्ट्रन, साइक्लोजेस्ट भी यूज की जा सकती हैं उनमें जिनमें हम प्रोजेस्ट्रॉन को ओरली फॉर्म में नहीं दे सकते, सिर्फ ईस्ट्रोजन का पैच लगा सकते हैं, यानी वो जिनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए या माइरीना रख दो, या फिर ये पैसरीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोनाइजर प्रोजेस्ट्रॉन की। तो कुछ ये सारी की सारी जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और कुछ में इवन सिप्रोटेनॉन एसीटेट भी कंबाइन होता है। तो ये हम सारी कॉम्बिनेशन जाके वो अभी डिस्कस करते हैं आगे, लेकिन इनके डिफरेंट डोजेज है, अल्ट्रा लो, लो, फिर मॉडरेट है, और हाई डोज की अमूमन जरूरत कम ही पड़ती है। अब ये भी हमने देख लिया। अब टिबोलॉन जो है ये कॉन्टिन्यूस होती है। टिबोलॉन के साथ ज्यादातर ये हॉट फ्लैशेस को मैनेज करता है, उसमें डेली ये कॉन्टिन्यूस है जो सिंगल देनी होती है। और बाकी ये जो बेजिडॉक्सिफेन बेसिकली है तो सम, लेकिन इसको प्रोजेस्ट्रॉन की जगह इस्तेमाल करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद एन एस्ट्रोजन। तो बेजिडॉक्सिफेन बेसिकली बहुत मिनिमाइज कर देती है प्रोजेस्ट्रॉन के साइड इफेक्ट्स को। अब इसमें अगर तो हम इसमें करते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज, और इसकी जो एज जो लिमिट जो भी लेटेस्ट में है वो ये कि आप 50 साल से पहले या 50 साल के बाद वाला भी एक आपके पास होता है, जो इसको कह सकते हैं एक क्राइटेरिया, कि अगर आफ्टर 50 ईयर्स अगर इसमें होता है विद इन 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज, तो आप सिक्वेंशियल दोगे अनलेस के पेशेंट को सिम्टम्स पहले से चल रहे होंगे। और अगर इसमें, और सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन सारी साइक्लिकल, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन आखिरी 12 से 14 दिन। और अगर विद इन 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज है तो ब्लीड फ्री रिजीम कैन बी गिवन फ्रॉम द आउटसेट। ठीक है, अगर आफ्टर 1 ईयर होता है तो, क्योंकि उसमें फिर आपको ईस्ट्रोजन की ज्यादा मिकदार चाहिए होती है, फिर आप उसमें कॉन्टिन्यूस दे रहे होते हैं। ओके, अब है एचआरटी रिजीम की हमने बात कर ली, काफी हद तक हमने इसको कर लिया है। अब रूट्स और रिजीम्स में तकरीबन सारी चीजें ही आपको पता है, ट्रांसडर्मल है, जेल्स हैं, पैचेस हैं, सबकुटेनियस भी हम बाज दफा ईस्ट्रोजन इम्प्लांट्स भी होते हैं जो दे सकते हैं, और बाकी विजाइनल ईस्ट्रोजन, रिंग पैसरीज, ये सब यू पीपल नो, मायरीना है, और प्रोजेस्ट्रोजन पैसरीज भी, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और बाकी तो ये हमने देख लिया। नाउ हाउ टू मैडम स्टॉप। प्रीवियस स्लाइड शो करते हैं। जी, मैडम प्रीवियस स्लाइड शो करते हैं जिसमें इनके नाम ये थे वाली एचआरटीज के। इससे किसकी प्रीवियस। बात कर रही हैं? नो मैडम, इससे पीछे वाली। ये इसकी बात कर रही हैं? किसके बात होगी मैडम ये? वो उसमें यस ये
ये वाली, मैडम वो इससे आगे थी। हाँ ये है। ये गैस की अगर बात है तो वो ड्रोस्पेरिनोन तो गैस में होती है। अब तो वैसे इसका एक और भी एक और मतलब उससे वो जो है वो जी एलोइन, मैडम ये वाली। बेसिकली ये भी 24/4 वाली प्रिपरेशन होती है, और लेकिन दिस इज नॉट गैस बेसिकली, लेकिन उसका स्ट्रक्चर उससे मिलता जुलता है। तो अब गैस की बजाय या गैसमीन जो है उसकी बजाय अब एलोइन, बाहर की कंट्रीज में तो एलोइन यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी प्रिपरेशन जहाँ तक हमने कर लिया था। अब एम इसको बेसिकली हम HRT की बजाय मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी ही, अब इसको लेटेस्ट नाम इसका यही है। तो इसमें स्लोली हम डिक्रीज कर सकते हैं डोज, और तकरीबन 4 से 5 साल, लेकिन बेसिकली देर इज नो, इसमें कोई रेड लाइन नहीं है, कोई इसमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है, दैट अगेन इज इंडिविजुअलाइज्ड। एब्रप्टली स्टॉप करने का अमूमन जरा सिम्टम थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा स्लोली टेपर ऑफ करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब HRT ऑल्टरनेटिव्स फाइटोएस्ट्रोजेंस होती हैं और हर्बल प्रेपरेशंस होती हैं, लेकिन इसमें जो बायोइडेंटिकल हार्मोन्स होते हैं वो जो कि बनाए जाते हैं, लेकिन मतलब ये हर्ब्स में या फूड में नहीं पाए जाते। बायोइडेंटिकल हार्मोन्स वो हैं जो कि हमारे नेचुरल हार्मोन से सिमुलेट करते हैं, जैसे माइक्रोनाइज्ड ईस्ट्रोजन एंड माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन। तो हर्बल प्रेपरेशन में बेसिकली ये फाइटो ईस्ट्रोजन ही होते हैं, जो कि इसका जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है। और अमंग द अदर नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट ये हैं जो वेजोमोटर सिम्टम्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेशेंट को मसला होता है वो वेजोमोटर सिम्टम्स की वजह से ही होता है। तो इसमें SSRI जो एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जो हम सारे करते हैं, और गैबापेंटिन है, ये सारे के सारे वो हैं जो कि न्यूरो मॉड्यूलेटर या न्यूरो ट्रांसमीटर को मॉड्यूलेट करते हैं, ये उसको मॉडिफाई करते हैं, सो दैट न्यूरोनल कंट्रोल जो है वेजोमोटर सिम्टम्स का वो कट ऑफ हो जाता है। तो ये उसको नेचुरली तरीके से कर रहे होते हैं। क्लोनिडीन ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, नॉन बाय द नेम ऑफ कैटाप्रेस, जिसको हम इस तरह से ये दे सकते हैं। और बाकी गैबापेंटिन तो काफ़ी कॉमनली यूज होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डेफिनेटली वो साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं, और ये बाकी जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस में ही आ जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि आपने कैसा उसका एनवायरनमेंट जो है, कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट ही बेसिकली है, और उसमें टॉनिक्स वगैरह, कैल्शियम, विटामिन, ये सारा कुछ चीज़ है, और विजाइनल लुब्रिकेंट्स हैं, मॉइस्चराइजर हैं, ये सारा कुछ हम करते हैं। अब इसमें जो बेसिकली हम ज़्यादातर जिनमें नहीं होता वो ज़्यादातर हम ये मैग्नीशियम मसल्स की वर्किंग के लिए होता है, मसल क्रैम्प्स के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। विटामिन डी और कैल्शियम तो हम देते ही हैं, बट दीज ऑल आर, सम ऑफ दीज आर होम थेरेपीज ऑल्सो। तो ये जो बीन्स, सीरियल्स या लेग्यूम्स हैं, ये फाइटोएस्ट्रोजेंस में होते हैं, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली। इसको हम आगे चलते हैं। अब HRT प्रेपरेशन की तरफ हम आते हैं। ठीक है, HRT प्रेपरेशन में प्रेमरीन है जो कि खाली खाली ईस्ट्रोजन ही है, और इसको हम दे सकते हैं जहाँ पे भी जो है वो, या तो एंडोमेट्रोसिस में भी बाज दफ़ा जब हम निकाल लेते हैं यूट्रस, ओवरी, सारा कुछ, उसमें फिर रिकरेंस के चांसेस नहीं होते, तो इस उसमें भी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज किया कोई फ्रोजन पेल्विस था, पूरा नहीं निकाल सकते, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जा सकती है प्रीवियसली एंडोमेट्रोसिस ट्रीटेड केसेस में। अब प्रोगाइनोवा है, दैट अगेन इज एन ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन, और ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन जो है ये ईस्ट्रेडल वैलिडेट इसमें होता है 1 या 2 मिलीग्राम। ये ज्यादातर हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे प्यूबर्टी इंडक्शन करनी होती है, लाइक इन प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर्स में भी हम देते हैं, या एक ऐसे केसेस जिनमें और कोई मसला नहीं है लेकिन खाली वेजोमोटर सिम्टम्स है, तो उनमें भी दे सकते हैं। स्टार्ट विद द लो डोज एंड देन यू कैन स्टेप अप। ईस्टेनॉर है, इसमें ईस्टेडल वैलिडेट है, और नॉर्जेस्ट्रल है 0.5 मिलीग्राम, और ये है 21 टेबलेट्स। तो ये क्या हो गई, सिक्वेंशियल। ठीक है, तो ये हो गई कंबाइंड सिक्वेंशियल टेबलेट, सॉरी साइक्लिकल कंबाइंड प्रेपरेशन। ये साइक्लिकल सिक्वेंशियल, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट तरह की टेबलेट्स हैं, एक ही सिंगल टेबलेट नहीं है।
तो पहले खाली ईस्ट्राडॉल वैलिडेट और उसके बाद फिर ईस्ट्राडॉल वैलिडेट प्लस नॉर्जेस्ट्रोल। तो ये है साइक्लिकल सीक्वेंशियल। अब फेमोस्टोन है, फेमोस्टोन 3 तरह की आती है और उसमें डिपेंड करता है कि ईस्ट्राडियोल, अब इसमें हेमीहाइड्रेट होता है, इसमें ईस्ट्राडियोल जो है वो कितनी मिकदार में है, कुछ कम डोज वाले हैं, कुछ ज्यादा डोज वाले हैं। तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, इसमें 28 टेबलेट, जिसमें ब्रेक नहीं होता उसमें 28 टेबलेट्स होती हैं, जिसमें ब्रेक होता है वो 21 टेबलेट्स होती हैं। तो 2/10 है जिसमें ईस्ट्राडियोल हेमीहाइड्रेट 2 मिलीग्राम होगा और डाइड्रोजेस्ट्रॉन होता है जो 3rd जनरेशन प्रोजेस्टेरोन्स में आता है। और इसके प्रोजेस्टेशनल जो साइड इफेक्ट्स हैं या एंड्रोजेनिक जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। तो इसमें ये 10 मिलीग्राम ही रहेगा इन दोनों में, 2/10 वाली में भी और 1/10 वाली में भी। लेकिन फेमोस्टोन क्वांटिटी में ये कम मिकदार में हो जाएगा, 5 मिलीग्राम तक आ जाएगा डाइड्रोजेस्ट्रॉन। ये हॉट फ्लैशेस और बाकी मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए ये यूज होता है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल फेमोस्टोन 2/10, 1/10 और ये सारे। अब प्रोगायलुटोन अगेन इज कंबाइंड साइक्लिकल, कंबाइंड साइक्लिकल तो है लेकिन ये इसमें कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसमें ये 2 तरह के हॉर्मोन्स हैं। तो वाइट टेबलेट्स इज ईस्ट्राडियोल वैलिडेट 2 मिलीग्राम। ये याद रखें कि जो कॉमनली जो ईस्ट्राडियोल वैलिडेट की ड्रग है, चाहे वो प्रोगालिटोन हो चाहे वो फेमोस्टोन हो, उसमें या वो इसमें तकरीबन 2 मिलीग्राम तो होता है, फेमोस्टोन में 1 मिलीग्राम तक इसकी डोज रिड्यूस की गई है। और रेड टेबलेट्स में नॉर्जेस्ट्रोल है 0.5 मिलीग्राम और ईस्ट्राडियोल वैलिडेट। अब जो डिफरेंट ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेपरेशंस हैं उनकी बायोपोटेंसी के हिसाब से उसकी डोज कम या ज्यादा होती है। जैसे मैंने बताया था ना कि माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन की मिकदार हमें ज्यादा देनी पड़ती है, सो दैट इज इन द 100 या 200, जबकि बाकी जो लिवर नॉर्जेस्ट्रोल है, नाइलो नॉर्जेस्ट्रोल है, डाइडोजेस्ट्रॉन है, नॉर्जेस्ट्रोल है, ये सब कम मिकदार में होती हैं। क्लाइमेन 21 ये साइक्लिकल सीक्वेंशियल वाइट टेबलेट ईस्ट्राडियोल वैलिडेट जी, वाइट टेबलेट्स ईस्ट्राडियोल वैलिडेट और में और जी जी हेलो वाइट मैडम टेबलेट ईस्ट्राडियोल वैलिडेट है बेटा, फिर सवाल कर लेना ताकि मैं इसको कंप्लीट करूं। जी बताइए। जो हमने अभी आपकी पढ़ा है आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रो नहीं बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बीच में कोई एक बात जो है ना, एक लफ्ज मुझे समझ मैडम आ ये जाता है। सो लेट्स ईस्टानोर टेक में इट होता फर्स्ट। जी किसमें? हेलो मैडम ये प्रोगैलोटिन और क्लाइमिन ये सारी साइक्लिकल सीक्वेंशियल है ना, इसमें कंटिन्यूअस हाँ जी। सीक्वेंशियल। अब ये देखो क्लाइमिन में 2 तरह की प्रेपरेशन होती हैं, 21 भी और ये है कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि प्रोजेस्टेरोन हमने आखिरी में मिला दी, ठीक है। जो पिंक टेबलेट थी वो 12 थी और उसमें हमने साथ सिप्रोटेडोन एसीटेट मिला दिया, जबकि पहली 16 वाइट टेबलेट्स में सिर्फ ईस्ट्रोजन था। तो ये कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल हो गया। और ये साइक्लिकल सीक्वेंशियल है जो सिर्फ 3 हफ्ते की मेडिसिन है, उसमें पहले में ईस्ट्रोजन खाली, दूसरे में ईस्ट्रोजन प्लस सिप्रोटेनोन एसीटेट, वही प्रेपरेशन वही है, सिर्फ उसमें एक में साइक्लिकल कर दिया, एक को हमने कॉन्टिन्यूस बना दिया, ठीक है। यस अब मैडम। ये खास तौर पे ये हॉट फ्लैशेस और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होती है, क्लाइमिन 21 भी और 22 भी, सॉरी 28 भी। ये एक्ने मैडम भी फिर तो ये एक जैसी लग रही है, उसमें भी आपने इसी तरह लिखा हुआ था। यस। अब इसमें देखो इसमें उसकी टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसकी डोज एक ही जैसी है, सिर्फ ये है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, जबकि 21 में ब्रेक था 1 हफ्ते का। अच्छा सही। ये 21 है हाँ बेटा, ये तो उसमें इसके नाम 21 से है, ही जाहिर है, हाँ 20। और ये इसके नाम से ही जाहिर है कि ये 28 डेज के लिए हमने देनी है। तो मैडम वो 21 डेज के बाद पेशेंट को पीरियड्स आएंगे, इसलिए वो बिल्कुल गैप आएंगे, है। बिल्कुल आएंगे।
बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एक हफ्ता हमने छोड़ा ही इसीलिए होता है कि उसमें उसकी विड्रॉल ब्लीडिंग होती रहे। अब जो विदड्रॉल ब्लीडिंग खास तौर पे, अब ये भी एक चीज समझ लें, एक तो हॉट फ्लशेस, दूसरा एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन इज बेटर मैनेज्ड बाय कॉन्टिन्यूस प्रेपरेशंस। क्योंकि जो हम एक हफ्ता देते हैं वो उसमें उसकी एंडोमेट्रियल सारा कुछ वो उसने शेड भी करना है, वो प्रोलिफरेट भी किसी ना किसी हद तक हुई होती है, लेकिन वो सप्रेसर इफेक्ट उसका प्रोलॉन्ग नहीं होता। वो सप्रेसर इफेक्ट उसका 10 से 12 दिन के लिए ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर और वेजोमोटर सिम्टम्स की मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर होती है कॉन्टिन्यूस के साथ। ओके तो मैडम इसमें 28 डेज लेगी तो बीच में पीरियड्स आएंगे लेकिन फिर भी लेगी? हाँ, मतलब उसने लेना ही है। अच्छा, देखो लेना जब ही है। देखो मेरी बात सुनो, अब जब ये खाली ईस्ट्रोजन ले रही है ना और प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, तो उसमें उसको पीरियड बिल्कुल आ सकते हैं और हो सकता है ना भी आए, दोनों चीजें हो सकती हैं कि ना भी आए। और खास तौर पे अगर हम पोस्ट मेनोपॉजल में देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये बंद हो जाती हैं बिल्कुल, इवन विद द साइक्लिकल। लेकिन कॉन्टिन्यूस में देने में ईस्ट्रोजन तो हम कॉन्टिन्यूसली दिए जा रहे हैं, जबकि इसमें क्योंकि इसी के बाद हमने ईस्ट्रोजन शुरू कर देनी है। ये पैक इसका खत्म होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पैक जब खत्म हुआ तो इससे अगले दिन इसने व्हाइट पिल से दूसरा पत्ता शुरू कर लेना। तो जब प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट खत्म होगा, हो सकता है उसको कुछ स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग हो, क्योंकि एक एक हार्मोन विड्रॉ हो गया, तो उसका विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं। सो लेट्स मूव क्विकली क्योंकि टाइम हमारा आज काफी हो गया। तो इविस्टा वो है जो कि हम कहते हैं कि द सिस्टर ड्रग ऑफ टमॉक्सिफिन। तो इसमें इसका खास तौर पे जो इफेक्ट है ये होता है फॉर बोन प्रोटेक्शन, जो खास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन। लेकिन ये हॉट फ्लैशेस को मैनेज नहीं करता, ये डीवीटी को भी प्री डिस्पोज करता है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका अगेंस्ट ब्रेस्ट सीए, यानी हमने ब्रेस्ट सीए को मैनेज कर लिया है। अब वो टेमॉक्सिफेन पे है टू प्रिवेंट द रिकरेंस, तो उसमें ये इसमें इसका जो है वो यूज किया जा सकता है। चलें जी, अब न्यू सम्स, ये जो बेजिडॉक्सिफेन मैं जो बता रही थी, इसमें ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन के लिए है, और बाकी इसमें कोई एंडोमेट्रियल या ब्रेस्ट टिश्यू वो नहीं होता, मतलब वो स्टिमुलेट नहीं होता। और लेकिन इसको हम प्रोजेस्टेरोन के की जगह इसको कंबाइन करते हैं विद एन एस्ट्रोजन। तो बेसिकली ये यूज होता है एज प्रोजेस्टेरोन फॉर द एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन, और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। अब यही जो ड्रग है टेमॉक्सिफेन, इसका एंडोमेट्रियम पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, ब्रेस्ट पे कुछ नहीं है। रिलॉक्सीफेन का जो इफेक्ट है या बेजिडॉक्सिफेन, ये दोनों ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये दोनों इसी ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। इनका ब्रेस्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है और इसका जो है वो एंडोमेट्रियम के ऊपर न्यूट्रल है, क्योंकि जो एचआरटी हमने दी थी। अब ये देखो कि ब्रेस्ट सीए में जो सबसे ज्यादा कल्प्रिट होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, नॉट द ईस्ट्रोजन, जो कि ईस्ट्रोजन को हम अमूमन समझते हैं। तो ये ब्रेस्ट सीए का रिस्क इसके साथ ज्यादा, एंडोमेट्रियम का भी ज्यादा, और टेमॉक्सिफेन के साथ भी ज्यादा, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रो ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होगा इसका। रिलॉक्सिफेन का न्यूट्रल है, इसलिए ये इसको एंडोमेट्रियम को कुछ नहीं कर रहा। और ये बेजिडॉक्सिफेन अगर हम कंबाइन कर देते हैं किसी भी ड्रग के साथ तो रादर इनहिबिटरी इसका इफेक्ट होगा। तो बाकी भी ये सारी चीजें जो हैं ये इसी कॉम्बिनेशन में यूज करती हैं। अब ये ईस्ट्रोजन और बेजिडॉक्सिफेन कंबाइन किया हुआ है, तो इसका दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। नेगेटिव मीन्स कि इसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा। अब लेवियोलजुटिबुलोन जो अमूमन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ये हॉट फ्लैशेस के लिए एक अच्छी ड्रग है, और ऑस्टियोपोरोसिस और जेनिटल एट्रोफी, तो देखा जाए तो ये एक वो है जो कि जो इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के, ये उन तीनों सिम्टम्स को मैनेज कर रही है। हॉट ऑस्टियोपोरोसिस तो थोड़ा सा लेट सिम्टम है, लेकिन जो इसमें यूजुअली जो साइकोमोटर इफेक्ट्स होते हैं या जो जेनिटल ट्रैक्ट एट्रोफी है, हॉट फ्लैशेस है, इन सबको मैनेज कर रहा है, और ये कॉन्टिन्यूस है। टिबोलॉन इसमें होगा 2.5 मिलीग्राम, और इसको रोज लेना है, इसमें कोई वो ब्रेक नहीं है, उसमें कोई फ्री इंटरवल नहीं है।
और इसका ईस्ट्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक और प्रोजेस्टेरोजेनिक इफेक्ट्स, यानी तीनों किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। मैडम ये पीओआई के पेशेंट को दे सकते हैं लिवियल जो है? दे सकते हैं, मतलब इसमें बेसिकली जो हम देते हैं ना पीओआई के पेशेंट्स को, उनमें प्रेफरेबली ईस्ट्रोजन प्रेपरेशन ज्यादा प्रेफरेबल होती है। और इसमें पीआईओ को वो बेसिकली अलहदा से उसका वो है, उसको मैं थोड़ा सा कवर करना चाह रही थी बहुत क्विकली, लेकिन टाइम इज रनिंग फास्ट, तो इसको जरा हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन हम दे सकते हैं इसमें। अब ये मैडम जो जी मैडम एक ये सिनेरियो आया था एग्जाम के अंदर कि पेशेंट थी वो, उसका बरका पॉजिटिव था लेकिन उसे हाँ, सीए ब्रेस्ट नहीं था, तो इसके ऊपर भी काफी उसमें बहस दे चली थी सकते कि हैं, अगर उसमें हो। दे सकते हैं। देखो जहां पे बरका पॉजिटिव हो और पेशेंट को ब्रेस्ट सीए ना हो, वहां पे हम यस बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, मैडम, उसमें मतलब कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशंस की, नहीं एचआरटी ओरल? नहीं, उसमें उसमें जो है वो हम दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें ब्रेस्ट अगर सीए नहीं है, बाकी सारी उसकी फर्ज किया सर्जरी हो चुकी हुई है, ओफरेक्टमी हो चुकी हुई है, तो फिर उसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें देखो उसमें अगर हम दें फर्ज किया प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन प्री डिस्पोज करता है तो ब्रेस्ट सीए, तो बेहतर होगा कि उसमें हम जैसे रिलॉक्सिफेन वगैरह हैं या ईस्ट्रोजनॉनी प्रेपरेशन है वो हम वेजोमोटर सिम्टम्स के लिए दे दें। चलें जी, अब ये जो पीओपीज हैं, पीओपीज बेसिकली हम देते हैं उसमें, क्योंकि इसमें वो नहीं, साइड इफेक्ट्स ज्यादा उसमें नहीं होते, लेकिन ये ज्यादातर हम देते हैं एज कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स या कोई साइकिल रेगुलेशन, नॉट एज एन एचआरटी, लेकिन ये कंबाइन की जा सकती है विद ईस्ट्रोजन। जो पीओपी है वो इज नॉट एक्सक्लूसिवली इज एन एचआरटी, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोजेस्टेशनल एजेंट जो कि हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ऑर्गामेट्रिल है, एक्सल्यूटॉन है। तो ये अमूमन जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में देते हैं उस तरह की ये प्रेपरेशन है। ट्रांसडर्मल पैचेस में क्लाइमेरा इज मोर फेमिलियर वन, और इसको इसको उसी तरह से मतलब डेली लगाने वाला भी होता है और वीकली लगाने वाला भी होता है, और इसकी अपनी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं कि आपने ड्राई स्किन पे लगाना होता है और इसमें आपको स्वेटिंग से ये सब चीज़ें बचनी होती हैं। सिमिलरली जो ज़्यादातर ये ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस होती हैं, बिकॉज फॉर द विजाइनल ड्राइनेस या वेजाइनल एट्रोफी के लिए आपको ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन ही चाहिए। पैचेस जो हैं वो दैट कैन बी कंबाइंड एंड दैट कैन बी ईस्ट्रोजन ओनली पैचेस, दोनों चीजें हो सकती हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस की हमने बात कर ली, इसके इतने प्रोज एंड कॉन्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो है वो ट्रांसडर्मल स्प्रे भी होता है, जेल भी होता है, और इसमें उसे बेसिकली डोज डिपेंडेंट। अब इसमें इतनी सारी इनोवेशंस आ चुकी हुई हैं कि आप कोई चिप भी लगा देते हो अपने आप को, मतलब पेशेंट को लगा देते हैं, और वो खुद ही आइडेंटिफाई करता है हार्मोन लेवल्स को, और उसके मुताबिक उसकी डिलीवरी हो जाती है। वो डिलीवरी सिस्टम जैसे डेवलप हुए होते हैं कि देखा कि हार्मोन की मिकदार कम हो गई है तो वो उसको डिलीवर कर देगा। ऐसे ही जैसे कि इंसुलिन को हम लगाते हैं एज पर ब्लड शुगर लेवल्स, तो वो होता है कि उसमें उसको ये मीटर्ड, हम इसको कहते हैं कि ये मीटर्ड उसकी मेजरमेंट होती है और उसके साथ उसकी मीटर्ड डिलीवरी होती है ऑफ द हार्मोन्स। बाकी स्प्रे वगैरह हैं जो कि बाजू पे भी किया जा सकता है, और नेजल स्प्रेज भी होते हैं, और ये भी ईस्ट्राडॉल है। और इसके अलावा माइक्रोनाइज ईस्ट्रोजन, और वो तो सारा हमने बात कर ली। सबकुटेनियस इम्प्लांट्स होते हैं जिसमें ईस्ट्राडायोल पैलेट होता है, जो हर 6 महीने के बाद, हम अभी तक तो हमें प्रोजेस्टेरोन पैलेट्स का ही पता है कि जडेल वगैरह है, इम्प्लानॉन है, ये सारे हैं जो कि कई सालों के लिए हम लगाते हैं, लेकिन ईस्ट्राडायोल पैलेट भी होता है जिसको हर 6 महीने के बाद चेंज किया जाता है। टेबलेट बाईजुवा वो है जिसमें बायो आइडेंटिकल ईस्ट्रोजन इस्तेमाल होता है और प्रोजेस्ट्रॉन भी। तो ये क्योंकि अगर आप ये देखो तो बायो आइडेंटिकल हार्मोन ईस्ट्राडायोल जो है वो 1 मिलीग्राम है, और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो 100 मिलीग्राम है, जो सीधा सीधा इसका मतलब है कि ये बायो आइडेंटिकल है, तभी इसकी डोज इतनी ज्यादा है। तो 30 कैप्सूल पैक है और हर रोज इसको लेना होता है इन इवनिंग विद द फूड, और इसको ये यानी ये कॉन्टिन्यूस है ये बाईजुवा।
ये जो चीज जो मैं बता रही थी कि NK3 इनहिबिटर्स है जो बेसिकली न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ हॉट फ्लैशेस को मैनेज करता है, ये वो चीज है जो अब यूके वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे ये यूज हो रही है क्योंकि FDA अप्रूव्ड है। सिर्फ इसका मसला ये है कि ये बाज दफा कॉन्टिन्यूस यूज जो है वो लिवर एंजाइम्स को रेस करेगा या लिवर इंजरी भी कर सकता है, लेकिन इसको हम टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी गुड प्रेपरेशन एज पर बिकॉज इट्स नॉट अ हार्मोन and it avoids all the side effects as are associated with the estrogen and progesterone preparation. This is also a new version जो कि और ये अवेलेबल भी है, मतलब नॉट इन पाकिस्तान लेकिन ये अवेलेबल भी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो ये मिलती है। तो ये है इंट्रारोजा जो DHD हाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन सल्फेट वेजाइनल पेसरीज, और ये जो DHEA पेसरीज हैं ये फिर कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। एंड एंड्रोजन्स एज यू ऑल नो कि ये प्रेपरेशन हमें चाहिए होती हैं फॉर द डिक्रीज्ड लो लिबिडो पेशेंट्स के लिए भी, और इसको डेली पेशेंट ने इस्तेमाल करना होता है। अब ये हैं जो कि बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर HRT यूज, सेंसर आइडेंटिफाई करेगा हार्मोन कितना हो गया, अब उसको उसके डिलीवरी का जो है वो जरूरत होती है उसको करने की। और इसके अलावा कुछ चिप्स भी हैं जिनके अंदर वो डिलीवरी सिस्टम भी होता है, नॉट ओनली सेंसर बट द डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो। सो दिस वॉज होल थिंग अबाउट HRT। और इसमें जो कुछ और जो चीज़ें मैं जो बताना चाह रही थी वो ये है कि इसमें हमने प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में क्या करना है। अब HRT इसमें भी जो हम करते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में, अब इसमें कुछ चीज़ें जो इसमें बताने वाली हैं वो ये कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर यू हैव टू एस्टेब्लिश इट फर्स्ट, और इसको हमने FSH लेवल के साथ एस्टेब्लिश करना है जो कि 4 वीक्स अपार्ट हम करेंगे तो वो कम से कम 25-30 से ऊपर आए। इसके साथ साथ हमने ईस्ट्रेडायोल लेवल्स, AMH लेवल्स, उसको अगर वो सारा आ जाता है फिर आप कैरियोटाइपिंग कराते हो, बाद बहुत अर्ली ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है, POF हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने इसमें एड्रिनल और थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज भी करानी होती है बिकॉज इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द पॉली एंडोक्राइन ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसके अकॉर्डिंगली साइड बाय साइड जो अदर कोमॉर्बिडिटीज है उसको हमने मैनेज करना होता है। इसमें लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज की जा सकती हैं, एंड वन ऑफ द लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मैलियन which contains 20 microgram of estradiol. Now the question is that why we are not using HRT for these patients, because जो HRT हम देते हैं जो पेशेंट को ये जो POI है इसमें बेसिकली तभी हम लेबल करते हैं ना जब वो 40 साल से पहले हो जाए, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव एज, और वो कंफर्म्ड हो गया। तो HRT जो हम देते हैं स्टैंडर्ड HRT प्रेपरेशन वो सिर्फ 40% स्पोरेडिक ओवुलेशन को रोकेंगी, सो स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो इन दोज पेशेंट्स हु गो इनटू प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बट हु डोंट वांट अनदर फैमिली या कोई और उसको रिप्रोडक्शन बिकॉज दैट ऑलरेडी इज कंप्लीटेड, तो फिर आप उसमें लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करोगे। और इवन टू दैट एक्सटेंड के जो आप इवन जो मीनोपॉज के बाद भी आप जो करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कवर देते हैं, वो आपने अगर फर्ज किया पेशेंट का 50 साल से पहले हो गया मीनोपॉज तो आप उसको 2 साल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव कवर दोगे, और अगर 50 साल के बाद मीनोपॉज हुआ तो 1 साल के लिए उसको मीनोपॉज कॉन्ट्रासेप्टिव कवर दोगे। सो इज फॉर दीज केसेस अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है तो इसमें फिर लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमने देनी होती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो HRT प्रेपरेशन जिसमें वही जो रूटीन की जो सारी चीज़ें हैं वो हमने करनी होती हैं, लेकिन उसमें पिल फ्री इंटरवल या ना हो या कम हो, यानी उसको 3 महीने के बाद भी आप पिल फ्री इंटरवल कर सकती हैं बिकॉज here the objective of giving hormone replacement therapy is a little bit different because इसमें जो है अगर इसमें कार्डियो और ऑस्टियो वाला रिस्क ज्यादा होता है, कार्डियो का रिस्क जो है वो इसमें एज पर देयर एज बहुत ज्यादा नहीं होता, वो स्टैंडर्ड उस तरह से मीनोपॉजल एज वाला जो है वो उसमें इस पे ट्रू नहीं है, बट हॉट फ्लैशेस कैन बी क्वाइट डिस्टर्बिंग।
और इसलिए फिर हम इसको थोड़ा सा जो है वो एक तो हम इसको अगर फर्ज किया इसको हमने पिल फ्री इंटरवल देना है तो फिर हम इसमें हाई डोज ईस्ट्रोजन वाली जो प्रेपरेशन है वो चूज करेंगे। एंड समटाइम्स टू द एक्सटेंट कि हम जो ईस्ट्रेडॉल वैलिडेट जो यूजुअल जिसमें ईस्ट्रेडॉल वैलिडेट होता है अप टू 2 मिलीग्राम, इसमें हम 4 मिलीग्राम तक भी जा सकते हैं इन सम केसेस वेयर द सिम्टम्स आर नॉट कंट्रोल्ड। तो ये है जो कि पीओआई से रिलेटेड है। अब एक और चीज जहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है वो है प्यूबर्टी इंडक्शन। और प्यूबर्टी इंडक्शन जो है वो हमने अगर टर्नर सिंड्रोम है या जहाँ पे बेसिकली गोनेडल फेलियर ही होता है जहाँ पे हमने ये देना होता है और कोई सेकेंडरी सेक्स क्राइटेरिया डेवलप नहीं हुए हुए, तो वहां पे हम फिर इसको फेजिक फॉर्म में देते हैं, यानी हमने पहले ईस्ट्रोजन देनी होती है बट इन वेरी लो डोज। एब्रप्टली हाई इंक्रीज अप नहीं करते क्योंकि उसमें म्यूटाजेनिक वो चेंजेस आ जाती हैं इन द सेल्स। तो उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, इट शुड रेप्लिकेट द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ द प्यूबर्टी, जैसे ग्रेजुअली उसका डेवलप होता है उस तरह से। तो नॉर्मली जो ईस्ट्रोजन हम देते हैं में ज्यादातर तो हम प्रोगाइनोवा ही दे रहे होते हैं इफ इट इज अवेलेबल। तो ईस्ट्रोजन को हम स्टार्ट करते हैं 1/8 और 1/10 ऑफ द एडल्ट डोज, और इस डोज को ग्रेजुअली हम बढ़ाते हैं 2 से 4 साल में। जितना आपने अर्ली शुरू किया उतना ही आपको लंबे ज्यादा अरसा लगेगा। एंड क्लोज टू द यूजुअल प्यूबर्टी एज, जैसे 13-14 साल की उम्र में या 14-15 साल की उम्र में, वो फिर ये चीजें हमें बाद दफा विद इन 2 years वी अचीव द इफेक्ट। फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेस्टेरोन हम तब कंबाइन करते हैं जब या तो 2 साल गुजर चुके हों ईस्ट्रोजन को दिए हुए, या जब उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कम से कम 7-8 मिलीमीटर हो जाए, या उसमें विड्रॉल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो तब हम इसमें जो है वो प्रोजेस्टेरोन शुरू करते हैं। और अगर फर्ज किया ये प्यूबर्टी डेवलप होने के बाद है तो आप हाई डोज ईस्ट्रोजन स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू कर सकते हो। सो दिस वाज होल थिंग अबाउट द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंड आई थिंक वी आर फार बियॉन्ड द टाइम कि आज हमें तकरीबन 1.5 से 2.25 घंटे लग गए इस पे। मैडम पीओआई के लिए कोई ब्रांड नेम के साथ बता दें, जैसे डिस्प्रूनिया के साथ मैडम पेशेंट आते हैं और देखो इसमें वही है ना कि पीओआई के लिए हम जितने भी ईस्ट्रोजेनिक प्रेपरेशंस हैं, गोइंग बैक टू द आवर प्रेपरेशन, जो हम इसमें देखो ये सारी की सारी जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। प्रोगैलेटोन भी यूज कर सकते हैं, फेमोस्टोन भी यूज कर सकते हैं, और ईस्ट्रेनॉर भी यूज कर सकते हैं। प्रोगाइनोवा तो कम ही यूज, मतलब इसमें वो हमने बेसिकली देखना है कि उसके कौन सा इफेक्ट हमें चाहिए और कौन से सिम्टम्स उसमें हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना होता है। बट अमंग द कॉम्बिनेशन थेरेपी दिस ऑल आर वर्केबल। मैडम अगर उसको पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रोगाइनोवा दे सकते हैं या नहीं, या फिर उसके लिए नहीं, अगर देखो पीओआई में अमूमन पीरियड्स तो नहीं आ रहे होते ना, उसमें ओवेरियन फेलियर है। मैडम जो पेशेंट मेरे पास आई थी ना उनको आ रहे थे पीरियड्स ना, उनके थे देखो पीरियड्स। इसमें जिस पेशेंट में रेगुलर पीरियड्स आ रहे हों वहां पे आप जो है वो आपने एफएसएच, अब एफएसएच की टेस्टिंग का तरीका ये होता है कि अगर आपने पेशेंट को ऑलरेडी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाला हुआ है या आपने विड्रॉल ब्लीडिंग की हुई है किसी भी हार्मोनल पिल से, तो कम से कम 2 हफ्ते गुजरने के बाद उसका एफएसएच चेक करो। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं। और अगर आपने इंजेक्शन लगाया तो फिर साल बाद एफएसएच करना पड़ेगा, वरना वो रिलायबल नहीं रहेगा। सो इफ एफएसएच इज रेज्ड एंड पेशेंट इज मेंस्ट्रुएटिंग रेगुलरली, देन यू हैव टू रिव्यू योर डायग्नोसिस कि कोई और वजह तो नहीं है। ओवेरियन रेजिस्टेंट सिंड्रोम भी तो होता है जिसमें एफएसएच रेज हो सकता है, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। इवन इन द पीओआई देयर कैन बी स्पोरेडिक ओवुलेशंस, जो हम अभी कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगा ओवुलेशन वाली चीज, स्पोरेडिकली वो हो सकता है। तो वो पेशेंट में प्रेगनेंसी हो सकती है। और जो स्पोरेडिक ओवुलेशन है, ओवेरियन रेजिस्टेंट सिंड्रोम में तो ज्यादा ये ओवुलेशन होने के चांसेस होते हैं। सो एट दैट टाइम एफएसएच कैन बी नॉर्मल। तो इसलिए जो है वो इसको पहले तो कंफर्म करो कि रियली इट इज अ केस ऑफ ओवेरियन फेलियर पीओआई या है भी या नहीं है।
बट इफ सपोज द पेशेंट इज हैविंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ हॉट फ्लैशेस, आप थायराइड फंक्शन को भी तो असेस करो। हॉट फ्लैशेस आर नॉट एक्सक्लूसिवली ड्यू टू ओवेरियन फेलियर, इट कैन बी ड्यू टू मेनी अदर कॉजेस। तो पहले उसका मैडम डायग्नोसिस वैसे उनको तो फर्टिलिटी सेंटर वालों ने POI करके लेबल किया हुआ था और वो वैसे डायग्नोस केस था, लेकिन मैडम उसकी कंप्लेंट थी लॉस ऑफ लिबिडो की और ना डिस्प्रोनिया की, लो लिबिडो की हम्म, और डिस्पेरोनिया की। जी डिस्पेरोनिया की वजह क्या थी? उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन का था कि हमेशा से परसिस्ट कर रहा था, वेजिनिस्मस भी तो होता है। और अगर वो वाकई उसमें है ड्यू टू वेजाइनल एट्रोफी है, तो देन शी नीड्स वेजाइनल लोकल प्रेपरेशंस। अदरवाइज आप इसमें जो पेशेंट जिसको हॉट फ्लैशेस हों या और सिम्टम्स हों और बाकी सारी कॉजेज आपने रूल आउट कर ली हुई हैं, तो देन यू कैन गिव हर बिकॉज शी इज ब्लीडिंग, तो फिर उसमें आप उसमें साइक्लिकल दोगे, अच्छा ओसीपीज आप फिर साइक्लिकल दोगे। अच्छा क्योंकि साइक्लिकल साइक्लिकल, हम तब भी ज्यादा देते हैं वेयर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इरेगुलर ब्लीडिंग या अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग भी, जहाँ पे हमने मैनेज करना होता है वहां पे भी हम इसको दे रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है मैम एक मैडम। क्वेश्चन है। मैम जो पेशेंट जिनको 50 इयर्स के बाद मीनोपॉज हो और वो कोई भी मतलब मेडिसिन नहीं ले रही, कोई HRT वगैरह पहले से उन्होंने नहीं ली, तो हम्म, मैडम उस पेशेंट को भी हम जनरली एडवाइस करते हैं कि वो 1 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन करे? हाँ, उसमें भी चाहे वो ना भी ले रही हो। देखो HRT जो ले रही होती हैं, HRT 60% में तो ओवुलेशन को सप्रेस कर देती है आफ्टर मीनोपॉज। इवन जो IUCDs हमने रखी होती हैं वो भी आप ज्यादा अरसा रख सकते हो उसमें, क्योंकि फिर ओवुलेशन सप्रेस करने के लिए आपको कम डोज चाहिए होती है। एंड इवन समटाइम्स द HRT कैन हेल्प इन दैट। लेकिन अगर HRT नहीं ली तो डेफिनेटली शी नीड सम कॉन्ट्रासेप्शन, मे बी वेरिएंट मेथड्स। बहुत सारी जी चीजें हैं जो इसमें हो सकती हैं, वो तो फिर मेल फीमेल में दोनों में वो सारी चीजें उसमें आप कंसीडर करोगे ना, अकॉर्डिंग टू हर प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू हर ओन चॉइसेस। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब हम ये क्लास बंद करते हैं, क्योंकि अब तो बोल बोल के मैम बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो जो आपने प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में बताया था, वो आपने यही बताया था ना, हम उसको सिक्वेंशियली लो डोज देंगे टिल मेनोपॉज। हाँ, उसमें मैडम नहीं, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव को लो डोज देंगे टिल द नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज। और अगर आपने HRT देनी है तो वो तो देते ही रहोगे, क्योंकि कुछ बार दफा ये कहा जाता है कि OCPs दे दो, मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दो एज HRT। लेकिन इसमें ये है कि आप अनड्यू एक्सपोजर करते हो टू द हाई डोज ऑफ हॉर्मोन्स अनलेस के कॉन्ट्रासेप्शन इज अ रिक्वायरमेंट। और जब हाई डोज ऑफ आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हैं तो डेफिनेटली उनके साइड इफेक्ट तो होते हैं। सो अनलेस कॉन्ट्रासेप्शन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप HRT ही की प्रेपरेशन देते हो विद अ लिटिल बिट हायर। अब ये ईस्ट्राडियोल वैलिडेट जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इज 7 times लेस देन द बायो अवेलेबिलिटी एंड पोटेंसी जो कि एथिनाइल ईस्ट्राडियोल है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में नेचुरली बॉडी बना रही होती है। तो उसकी अब ये जो हम HRT में प्रेपरेशन यूज कर रही होती हैं, ये उनका इफेक्ट उतना नहीं होता, चाहे इनकी डोज हमें लग रहा होता है कि ये 2 मिलीग्राम होगी, 1 मिलीग्राम होगी। तो उनका लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो इज फार लेस एज कंपेयर टू द नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी विच इज एथिनाइल ईस्ट्राडियोल। ठीक है। मैडम जिन पेशेंट्स को हम POI के लिए ये वाली HRTs देते हैं और अगर उनका फर्टिलिटी होता है तो हम उन्हें कहते हैं कि 5 to 10% चांस है कि वो स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर सकती हैं, तो मैडम वो इस HRT पे रहते हुए फिर करते हैं कंसीव करने का? अब देखो HRT तो हमने देनी ही देनी है, वो उसमें वही बात है कि अगर उसमें चांसेस हैं तो HRT उसको सिर्फ अगर नॉर्मल भी है तो उसमें 40% को सप्रेस करेगी ओवुलेशन, बाकियों में फिर भी हो सकती है। इवन OCPs लेते हुए पेशेंट की ओवुलेशन हो जाती है और प्रेगनेंसीज हो जाती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द ओवेरियन डिस्फंक्शन। चलो जी, मेरा ख्याल है अब हमें क्लास स्टॉप करनी चाहिए। तो एनी टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास और शुड आई चूज इट माई सेल्फ? चलो मैं फिर खुद ही चूज कर लूंगी, ठीक है।
ओके थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू मैडम। मैडम हेलो। जी जी। मैडम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे कोई क्लास रख लें। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अच्छा चलो, न्यूरोडायनामिक की मैडम उसमें वो सारे ग्राफ्स जो है यूरोडायनामिक ना से वो डिस्कस होंगे। करते हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज।